taking good care of your health. Corona is just increasing in speed. जो spike अभी बढ़ रहा है in the second wave, it's really going bad. So definitely everybody is concerned about their health and how to protect yourself. अगर कोरोना हुआ है तो उसमें से जल्दी बाहर कैसे निकले, और अगर नहीं हुआ है तो उसमें से बचे कैसे, अगर हुआ तो क्या क्या करना है with our own self. So this is what the whole topic for today is. And with pranayam, with breathing exercises, how we can work up, how we can build our immunity, how with dietary care, mudras, the hasta mudras, how do they help in recovering faster. So we are going to touch upon all these topics. I would appreciate if you would keep your microphones muted. Keep a notebook and a pen with you. You can note down whatever instructions, whatever techniques we are going to, I'm going to show you right now. So in case there are questions, we will take them up towards the end of the session, so that in between the flow is maintained, in between nobody is disturbed. So it's a sincere request to keep yourself muted throughout the session. And towards the end, you can open up, you can unmute, and you can ask questions. All right. So I see a lot of known faces here. Many are known to me, but for those who don't know me, I will just briefly introduce myself. I'm Dr. Ami Lakhani. I am a qualified homeopath by graduation, and practicing consulting dietitian and nutritionist by certification, by profession, and by passion. I love yoga, and by passion, I love to teach yoga. I'm YCB certified yoga trainer, and I hold a diploma from the Mumbai University in yoga philosophy. So this is briefly to introduce myself. In these testing times, अब क्या करें? So हर किसी को यही सवाल है. So without wasting much time, let's get started. Breathing. जन्म से लेकर आज तक हमने सबने ब्रीदिंग किया है. कोई ऐसी मोमेंट नहीं है जब हम ब्रेथ के बगैर रहे हों, राइट? सो राइट फ्रॉम द टाइम द चाइल्ड इज बॉर्न, बच्चा अगर रोया नहीं तो सबको टेंशन, क्यों रोया नहीं, क्यों रोया नहीं. उसको उल्टा पकड़कर उसको एक लगाते हैं ताकि वो रोए. क्यों रोए? ताकि उसके लंग्स खुले. लंग्स जैसे ही खुलते हैं तो नेचुरली the baby will start breathing. Till the baby is in the mother's womb, it does not have to worry about breathing, it does not have to worry about eating, it does not have to worry about anything for that matter. लेकिन जैसे बाहर संसार में आया तो सारी साइकिल शुरू हो जाती है, and the baby has to start breathing for itself, it has to start eating for itself, it has to do its digestion process. सारी प्रोसेसेस शुरू हो जाती है, और ये कोई भी सिखाता नहीं है बच्चे को, वो अपने आप ही ये सारी चीजें करना शुरू कर देता है. इट इज द बेसिक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट फॉर एवरीबडी ऑन दिस अर्थ, एवरी लिविंग बीइंग ऑन दिस अर्थ. सो जन्म से लेके आज तक जो ब्रीदिंग चलते ही आ रहा है, चलते ही आ रहा है, उस पर हमने ध्यान ज्यादा दिया नहीं है. नेचुरली जो योगा कर रहे हैं, जो ये प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, वो अवेयरनेस के साथ ब्रीदिंग कर रहे होंगे, बट ज्यादातर हम लोग अपनी लाइफ में, अपने आउटर वर्ल्ड में, अपनी एक्टिविटीज में, अपने वर्क में, अपने संसार में इतने बिजी होते हैं कि हम ब्रीदिंग पर ध्यान नहीं देते. तो ये ब्रीदिंग क्या हम सही कर रहे हैं? यस, नो. सो देयर आर टू थिंग्स. ब्रीदिंग तो चलते ही रहता है, तो हमको सबको लगता है वो सही ही है, लेकिन ईश्वर ने जो हमें दिए हैं लंग्स इनबिल्ट, जो हमारे अंदर है, 6000 सीसी की कैपेसिटी वाले लंग्स दिए हैं, लेकिन हम उसमें से कितना लेते हैं? इट्स जस्ट, यू विल बी शॉक्ड टू नो, इट इज जस्ट 500 सीसी. हम ब्रीदिंग जब करते हैं तो हम यूटिलाइज सिर्फ 500 ml की स्पेस यूटिलाइज करते हैं, सिर्फ उतनी ही हम लेते हैं. तो कहाँ 6 लीटर और कहाँ 500 ml, इतना बड़ा फासला है. तो डू यू थिंक वी आर ब्रीदिंग करेक्ट? यस, नो, यस, नो. शो मी अ थम्स अप if you agree with me. Okay, so yes,
सो हम कहीं ना कहीं तो गलत कर ही रहे हैं. सो इसको सही करने के लिए डेफिनेटली वी हैव योगा, वी हैव प्राणायाम टेक्निक्स. सो जब तक हम अवेयर नहीं है, जब तक हम आउटर वर्ल्ड में बिजी हैं, तब तक चल रहा है, आज तक अभी तक चल रहा है. 5 ml पे हम टिके हैं, अच्छे से टिके हैं, हेल्थ भी ठीक है, जो भी है ठीक ठाक है. लेकिन अब उसे अगर स्ट्रॉन्ग बनाना है तो थोड़ा सा हमें उसके ऊपर मेहनत करना पड़ेगा, राइट? सो here we have some pranayam techniques which will help us move ahead and which will help us increase our capacity, lung capacity. So जो 500 की कैपेसिटी पे हम जो आज तक ले रहे हैं, उसे बढ़ा के धीरे धीरे हम 1500 2000 तक हम लेके जा सकते हैं. हमारे ऋषि मुनि जो हैं, वो जो गुफाओं में जो तप करते हैं, घोर साधना करते हैं, जो एक नेचुरल, जो इतने हजारों साल पहले जो ये सारी टेक्निक्स को हमारे सामने लाए हैं योग के रूप में, तो उन्होंने तो, वो तो नेचुरल साइंटिस्ट थे वो, और हाईएस्ट डिग्री के साइंटिस्ट थे. तो योगा इतना साइंटिफिक उन्होंने बनाया है. हम आज के साइंटिस्ट लैब पे डिपेंड करते हैं, एक्सपेरिमेंटेशंस करते हैं, सब बाहर से करते हैं, और फिर उसमें से जो हमें रिजल्ट्स मिलते हैं तो उसको हम इन्फ्रेंस के रूप में हम डिक्लेयर करते हैं. लेकिन जो हमारे ऋषि मुनि थे पहले के जमाने के, इतने हजारों सालों पहले से, तो उन्होंने तो सारे एक्सपेरिमेंट्स इंटरनली खुद के ऊपर करके इतना अच्छा सिस्टम बनाया. दे आर like the highest level of scientists because they experimented on themselves. They did their tapasya, their sadhana, they did lot of cleansing inside, they did lot of breathing things, and they did lot of asanas, and that's how, with intuition, with their strong abilities, because ये सब करके उन्होंने सिद्धियां पाई, और वहां से उनकी इंट्यूटिव लेवल्स जो स्ट्रॉन्ग हुए, वहां से उन्होंने ये पूरा योग का शास्त्र बनाया महर्षि पतंजलि ने. सो लेट्स गिव the due credit to Maharshi Patanjali. We will start with a short prayer offering our obedience to Maharshi Patanjali. So हाथों को जोड़ दें, रिलैक्स रहें, कमर को सीधी रखें, आंखें बंद कर दें, चेहरे पर एक सुंदर सी स्माइल, और 3 गहरी सांसें लें. योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीना पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मिन्. पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मिन्. ॐ सहनाववतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ॐ शान्ति शान्ति शान्ति. सर्व गुरुजनों को वंदन. Slowly open your eyes. And yes. Okay, so let's get started. Immunity बढ़ाने के लिए हम जो टेक्निक्स आज करेंगे, so if I would appreciate if you are doing it with me together. I will show a demonstration and then we can do a round together, 1 round or 2 rounds depending on how it is going about. Okay, so normally हमारी respiratory rate होती है 15 से 18. All right. So in 1 minute, respiratory rate माने 1 मिनट में हम कितनी बार सांसें भरते हैं. तो नॉर्मली आप देखेंगे, अगर आप काम है, शांति से बैठे हैं और आपके
कोई मन में कोई हलचल, ऐसे स्ट्रॉन्ग हलचल नहीं चल रही है, आराम से आप बैठे हैं, तो नॉर्मली हमारी ब्रीदिंग रेट होती है 15 to 18 ब्रेथ्स इन अ मिनट। सो इस हिसाब से हमारे दिन में, अब ये जो हम ब्रीदिंग करते हैं वो 500 ml के हिसाब से हम ब्रीदिंग कर रहे हैं। अब जब इस हिसाब से एक दिन में हमारी 21,600 ब्रेथ्स होती है। ऑलराइट, 21,600 जब हम 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, 15 मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट्स इन 1 आवर एंड मल्टीप्लाई बाय 24 आवर्स, तो इस हिसाब से 15 की स्पीड से हमारे 21,600 ब्रेथ्स इन अ डे होते हैं। अब प्राणायाम द्वारा हम क्या करेंगे? प्राणायाम का मतलब है प्राण, प्राण इज द वाइटल एनर्जी, और आयाम, प्राण को लंबा करना, आयाम मीन्स एक्सटेंशन। सो प्राणायाम माने जो प्राण एनर्जी हम ब्रीद इन कर रहे हैं उसी को लंबा करना, सो दैट इज प्राणायाम। सो प्राणायाम टेक्निक से हम जो 15 है हमारी रेस्पिरेटरी रेट, उसको हम कम 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 करते हुए तकरीबन 10 तक आते हैं, 12 तक आते हैं, 10 तक आते हैं, उससे भी कम होते हुए we try to come down to around say 8 9 7 whatever according to your capacity, how much ever you can, how much you practice, इसके ऊपर है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप उसको कम ले जा सकते हैं। और जैसे कछुए को हम जानते ही हैं हम सब कि 1 मिनट में सिर्फ एक सांस लेता है और 100 साल की लंबी उम्र जीता है। सो एग्जैक्टली इन द सेम वे, जितना हम स्लो ब्रीथ करेंगे, जितना हम लंबा ब्रीथ करेंगे, उतना हम हेल्दी भी रहेंगे और अच्छे से हम अपनी लाइफ को जी पाएंगे। ऑफ कोर्स डेथ नोबडी नोज व्हेन इट इज रिटन, हाउ इट इज रिटन, बट जितना जिए उतना अच्छा जिए, खुशहाली से जिए, कामनेस के साथ में जिए, पीस के साथ में जिए और हैप्पी जिए, सबको आसपास में खुशियां बांटे, इस तरह से हम जिए। So that is the whole purpose of doing pranayam, keeping yourself calm, balanced, centered. And with pranayam, what we do is we activate our पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो मेडिकल, ये थोड़े से मैं मेडिकल टर्म्स भी यूज कर रही हूँ साथ में, ताकि आपको पता चले कि वो प्राणायाम से हमारे फायदे क्या होते हैं। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वो सिस्टम है जो जब हमारे सामने अगर कोई खराब सिचुएशन आ जाती है या सडनली हम ऐसे न्यूज सुन लेते हैं जिससे हम डिस्टर्ब हो जाएं, तो हमारे अंदर बहुत सारी हलचल हो जाती है, एक फ्लाइट या फ्राइट की सिचुएशन खड़ी हो जाती है। तो इस समय हमारी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाती है। लेकिन इस समय पर खुद को बैलेंस रखना, खुद को सेटल्ड रखना और ढंग से सोचकर एक निर्णय लेना, डिसीजन लेना, तो ये काम अगर आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड है तो इस समय पे आप अपना कूल रख पाएंगे, अपना काम रख पाएंगे और जो जरूरी है वो आप एक्शन ले पाएंगे, उस हिसाब से आप डिसीजन ले पाएंगे। सो ऑल दिस can get activated, your parasympathetic nervous system gets activated by doing pranayam. So this हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले ये ऑलरेडी हमारे वेद शास्त्रों में हमें दिया है, हमें प्रदान किया है थ्रू पतंजलि योग सूत्र। वी ऑल नो दिस। हठ योग प्रदीपिका है जो स्वामी स्वात्माराम जी ने लिखी है। तो इनमें सारों में, इन सारे ग्रंथों में ये हमें बताया है कि प्राणायाम is the best to keep yourself happy, calm and healthy and fit. Okay, so let's get started. हम शुरू करेंगे। I hope everybody has taken steam. Steam सबने ली है? एक बार देख लें, राइट नॉस्ट्रिल, लेफ्ट नॉस्ट्रिल आपकी बिल्कुल खुली है, इस तरह से स्निफ करके देख लें सब। ओके, इन केस देयर इज एनी ब्लॉकेज, जो अगर आपको लगता है कि नहीं सही नहीं है, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद नाड़ी शुद्धि। ये नाड़ी शुद्धि श्वसन मार्ग शुद्धि क्रिया है। सो हियर व्हाट वी डू, हम एक नॉस्ट्रिल को बंद कर देते हैं और दूसरी नॉस्ट्रिल से इनहेल और एक्सहेल थोड़ा जोर से स्ट्रॉन्ग करते हैं, थोड़ा फ्रिक्शनली करते हैं, ताकि अंदर म्यूकोजल लाइनिंग में कुछ भी चिपका हुआ डस्ट, डर्ट, फॉरेन एंटीबॉडीज जैसे कि ये वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं, जो भी डस्ट है, एलर्जी क्रिएट करने वाला डस्ट है, तो कुछ भी अगर अंदर फंसा हुआ हो तो उसे हम बाहर निकालते हैं। तो सबसे पहले हम नाड़ी शुद्धि करते हैं। दिस यू कैन डू अर्ली इन द मॉर्निंग ऑल्सो एंड आफ्टर योर बाथ ऑल्सो। स्पेसिफिकली यू कैन डू गर्म पानी से नहाकर या स्टीम लेकर उसके बाद में आप ये नाड़ी शुद्धि करें। सो वी स्टार्ट टुगेदर। राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें,
रीढ़ की हड्डी, आपकी स्पाइन को सीधा रखें. We will do 5 breaths on each side. So राइट नॉस्ट्रिल को आप क्लोज करें. अच्छा, क्लोज करने के लिए इस तरह से आप विष्णु मुद्रा लगाएं. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नासिका मुद्रा या प्रणव मुद्रा. सो फर्स्ट 2 फिंगर्स को क्लोज रखेंगे, लास्ट 2 फिंगर्स को ओपन रखेंगे. थंब से राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करेंगे और जो थर्ड फिंगर है उससे लेफ्ट नॉस्ट्रिल को क्लोज करेंगे. सो दिस इज द बेसिक मुद्रा. इवन फॉर अनुलोम विलोम, फॉर चंद्रभेदन, सूर्य भेदन प्राणायाम, सब में यही मुद्रा हम यूज करते हैं. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट. राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें. लेफ्ट नॉस्ट्रिल से मुझे देख लीजिए एक राउंड. इनहेल, आई एम टेकिंग माय हेड अप, आई एम इनहेलिंग एंड एक्सेल करते हुए स्ट्रॉन्ग, आई एम टेकिंग माय हेड डाउन. तो इस तरह से हमें नाड़ी शुद्धि करनी है. पहले हम लेफ्ट साइड से करेंगे. सो राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर दें एंड लेट्स स्टार्ट. 1, इनहेल, एक्सेल, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करें और लंबा करें. इनहेल, 2, एक्सेल, 3, इनहेल, एक्सेल. आपको सबको आवाज आनी चाहिए इनहेल और एक्सेल की. इनहेल, एक्सेल एंड वन मोर टाइम. इनहेल एंड एक्सेल. थोड़ी देर आंखें बंद रखें, जस्ट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, एंड सी हाउ इट फील्स. हम अभी सैंपल के तौर पे हम सिर्फ 5-5 राउंड कर रहे हैं, but for your practice you can do 2 to 3 rounds of 10-10 each. All right, so then we go on the right side. लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कर दें, राइट नॉस्ट्रिल पे जाएं. इनहेल, राउंड 1, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, inhale, exhale and relax. You can use your napkin if you need to. आप नोटिस करेंगे कुछ ना कुछ तो बाहर निकला ही होगा. भले ही आप कितना भी सफाई करें, ब्लो आउट करें या स्टीम लें, फिर भी नाड़ी शुद्धि में बहुत कुछ अंदर से, बिकॉज ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग ब्रीथिंग है, तो अंदर से क्लीनिंग होती है around your nasal passages and your nasopharynx area. So यहाँ पे जमा हुआ जो भी कचरा होगा वो बाहर निकलेगा because of the friction, because of the heat. Okay. So after this, we will now do some warm up exercises. So warm up के लिए आप थोड़ा सा brisk walk भी कर सकते हैं, थोड़ा सा on the spot jogging भी कर सकते हैं. आप सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं बॉडी को थोड़ा वार्म करने के लिए, हीट अप करने के लिए, बिकॉज अंदर जितनी गर्मी बढ़ेगी उतना इजीली आपका अंदर से जो भी डिटॉक्स करना है हमें वो इजीली बाहर निकल पाएगा. सो थोड़ा बॉडी को वार्म अप करना जरूरी है. सो राइट नाउ आई एम नॉट शोइंग सूर्य नमस्कार एंड एवरीथिंग, बट इफ यू नो यू कैन प्रैक्टिस ईदर सूर्य नमस्कार और आप थोड़ा सा ब्रिस्क वॉक ही कर ले, स्पॉट पे ही वॉकिंग कर ले. बाहर तो जा नहीं सकते तो जगह पे ही 1 2 1 2 1 2 इस तरह से थोड़ा सा फास्ट वॉकिंग आप कर सकते हैं. या फिर अपने टोज पे, फॉर पीपल हु आर यंग, जिनको नीज की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो थोड़ा जॉगिंग भी कर सकते हैं मीडियम पेस पर, जिससे बॉडी में अंदर वार्म अप हो और आपकी हार्ट रेट थोड़ी सी फास्ट हो. ऑलराइट, आफ्टर दीज वार्म अप टेक्निक्स, नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज हम थोड़ी सी सूक्ष्म व्यायाम करेंगे. तो ये सूक्ष्म व्यायाम आपके जॉइंट्स को, आपके स्पाइन को फ्री करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. जितना आपका स्पाइन फ्री होगा, जितना आपका पोस्चर अच्छा होगा, उतनी आपके लंग्स खुलेंगे और उतनी आपकी ब्रीदिंग अच्छी होगी. सो आई एम जस्ट शोइंग हियर. मैं थोड़ा सा दूर जा रही हूँ ताकि आप मुझे पूरा देख पाए. बैठे बैठे ही कर रहे हैं, नॉट विथ स्टैंडिंग. सो दोनों हाथों की फिंगर्स को इंटरलॉक कर दें इस तरह से और चेस्ट के पास पकड़कर हाथों को
आगे ले जाएं इस तरह से। अब पूरा स्ट्रेच करते हुए एल्बोज को लॉक करें और फिर स्पाइन को थोड़ा सा पुश करें पीछे की तरफ। ओके, यू कैन सी, सो आई एम हियर, I stretched my hands first and then I'm pushing my spine. So spine में थोड़ा सा कर्व आएगा मिडिल बैक में और हाथ पूरे से स्ट्रेच रहेंगे। यहाँ पे हम होल्ड करेंगे फॉर 10 काउंट्स। पोस्चर को होल्ड करते हुए आराम से ब्रीदिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड यू रिलीज। धीरे से हाथों को वापस चेस्ट के पास ले आए। अब सर के ऊपर लगाते हुए, अब सर के ऊपर लगाते हुए हाथों को सीधा ऊपर ले जाएंगे सांस भरते हुए। ब्रीद इन, गहरी सांस लें और हाथों को ऊपर खींचें। जितना ऊपर खींच सकते हैं उतना स्ट्रेट रखें एंड सी दैट योर हैंड्स आर टचिंग योर ईयर्स। ऑलराइट, तो इस तरह से हाथों को खींचते हुए स्पाइन को सीधा ऊपर खींचें। ट्राई टू फील टॉल एंड एट द सेम टाइम ब्रेथ को, चेस्ट में एक अच्छा सा ओपननेस, एक फ्रीनेस को फील करें। यहाँ पे हम होल्ड करेंगे 10 काउंट्स। 1 होल्ड करें, 1 2 3 अच्छे से स्ट्रेच करें, 5 6 7 8 9 एंड 10। धीरे से हाथों को वापस नीचे ले आए। अब थर्ड चीज हम करेंगे, फिर से हाथों को ऊपर ले जाते हुए, हाथों को कानों के पास स्ट्रेट ऊपर खींचते हुए एक साइड बेंड करेंगे। ओके, so when you are bending on your side, see that you do not bend forward like this. आपके हाथ और आपके शोल्डर्स एक लाइन में हो और आपका हाथ ऐसे लटक ना जाए। हाथों को सीधा स्ट्रेच करते हुए साइड पे बेंड करेंगे। यहाँ पे हम 10 काउंट्स का होल्ड करेंगे। लगे रहें, पकड़े रखें। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and then come back to center and go on the other side. दूसरी तरफ जाएं। हाथों को इंटरलॉक रखें, फिंगर्स को इंटरलॉक करके ऊपर की तरफ खींचे रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and come back to center. जब आप साइड बेंड कर रहे हैं, जब आप पोस्चर में हैं, तब आप ब्रीदिंग नॉर्मल रखें, तब आप ब्रीदिंग को होल्ड ना करें। ऑलराइट, इसके बाद फिर से दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे। फिंगर्स को इंटरलॉक करते हुए हाथों को पीछे ऊपर की तरफ टर्न कर देंगे और थोड़ा सा बैकवर्ड बेंड जाएंगे। जब ये बैकवर्ड बेंड जाएंगे तो आप एक अच्छा सा स्ट्रेच महसूस करें ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ योर एरिया ऑफ योर बॉडी। ओके, तो अराउंड योर चेस्ट एंड अराउंड योर बेली एक अच्छा सा स्ट्रेच मिलेगा आपको। और पीछे जितना आप हाथों को ओपन कर सके, सो दैट योर आर्मपिट ओपन्स अप कंप्लीटली, आपके लंग्स खुले, आपकी स्पाइन में एक अच्छा सा पीछे की तरफ खींचा हुआ है, एक स्क्वीज महसूस हो। इस तरह से आपको पीछे जाना है एंड वी होल्ड हियर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड धीरे से सेंटर में आकर हाथों को नीचे ले आए। एंड देन वन मोर थिंग वी आर गोइंग टू डू इज ट्विस्ट लेंगे और फिर एक फॉरवर्ड बेंड लेंगे। सो इसी तरह से आई एम होल्डिंग नाउ ओनली फॉर 5 काउंट्स, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करें तो आप 2 या 3 राउंड्स इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं 10-10 काउंट का होल्ड लगाकर। अब हाथों को ऊपर लेकर फिर से इस तरह से ट्विस्ट करना है। तो जब ये ट्विस्ट कर रहे हैं तब आपको ये ध्यान रखना है कि आप कमर से ट्विस्ट करें और आपके शोल्डर्स भी साथ में ट्विस्ट हों। ऑलराइट, सो इट शुड नॉट बी लाइक ओनली ऊपर की बॉडी आप मूव कर रहे हैं, नीचे का स्थिर रह रहा है, ऐसे नहीं। आपको पूरा कमर से ट्विस्ट करना है ताकि आपकी रीढ़ की हड्डी में, आपके वर्टेब्रल कॉलम में एक अच्छा सा ट्विस्ट महसूस हो, एक स्क्वीज महसूस होना चाहिए। यहाँ पे 5 काउंट्स का होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड कम बैक टू सेंटर एंड गो ऑन द ऑपोजिट साइड। राइट साइड पे जाएं आप। ट्विस्ट नाइसली, स्ट्रॉन्ग, फील करें उस ट्विस्ट को और एंजॉय करें वो स्ट्रेच को। 1 2 3 4 एंड 5 एंड कम बैक टू सेंटर। ये बेसिक सूक्ष्म व्यायाम है अपने स्पाइन को हेल्दी रखने के लिए। अब एक फॉरवर्ड बेंड भी जाएंगे। तो यहाँ पे फिर से एक बार हाथों को ऊपर लेकर स्ट्रेच करेंगे, चिन को अप करेंगे। अब ये चिन अप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब चिन अप होगी तभी आपकी स्पाइन, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहेगी। अगर आप ऐसे रखेंगे तो ये कर्व हो जाएगा। आप देख सकते हैं जब मेरी ये नीचे है चिन,
तो मेरा स्पाइन कर्व्ड है, लेकिन जब चिन अप है तो एक नेचुरल सा अलाइनमेंट बनेगा स्पाइन में. सो एट दैट टाइम नाउ यू बेंड फॉरवर्ड, यू ब्रीद आउट एंड देन यू बेंड फॉरवर्ड फ्रॉम योर टेल बोन. ठीक है, तो इस तरह से स्ट्रेच करके यहाँ पे भी हम होल्ड करेंगे. 1 2 3 4 एंड 5. फिर से चिन अप करके ऊपर आए, सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आए. तो ये हुआ हमारा सूक्ष्म व्यायाम स्पाइन को फ्री करने के लिए. स्पाइन फ्री रहेगा तो ब्रीदिंग अच्छी होगी और आपके सारे एनर्जी चैनल्स ओपन रहेंगे, जिससे आप अच्छी एनर्जी, फुर्ती जो होती है, जो एक फील आनी चाहिए, अच्छी सी फ्रेश फीलिंग आनी चाहिए, एनर्जेटिक फीलिंग आनी चाहिए, वो अगर रीढ़ की हड्डी आपकी ओपन होगी, फ्री होगी, तभी ये आप महसूस कर पाएंगे, एक्सपीरियंस कर पाएंगे. ऑलराइट, सो ओके, समबडी हैज रेज्ड हैंड. ओके, आप क्वेश्चंस को नोट करें, एंड में हम क्वेश्चंस लेंगे. ऑलराइट, somebody has raised hand but we will take questions in the end, वरना हमारा बीच में टाइम फ्लो अटक जाएगा, बीच में डिस्टर्ब हो जाएगा. ऑलराइट, सो आप प्लीज म्यूट रखें. भावना जी, somebody has opened up, please keep yourself muted. Okay, so after this nadi shuddhi and this सूक्ष्म व्यायाम, we are now taking up some breathing techniques. अब हम कर रहे हैं माउथ एक्सलेशन, स्ट्रॉन्ग माउथ एक्सलेशन. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्रीद इन हमें नासिका द्वारा ही करना है, लेकिन जब हम एक्सेल करेंगे तो हमें मुंह से सांस छोड़नी है और एक आवाज के साथ में छोड़नी है. सो इट विल बी लाइक दिस. गले के मसल्स को, लोअर जॉ को थोड़ा सा टाइट पकड़कर ऐसी आवाज में, थोड़ी फॉर्म आवाज में आप जब सांस छोड़ेंगे तो आप नोटिस करेंगे आपको बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस इस एरिया में महसूस होंगे. विद दो स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस व्हाट इज हैपनिंग, अंदर का जो भी फंसा हुआ कचरा है वो आप थ्रू द सलाइवा वो बाहर निकलेगा. अंदर का जो भी फंसा हुआ म्यूकस है, यहाँ पे कई लोगों को यहाँ पे बलगम फंस जाता है, बाहर नहीं निकाल पाते, अंदर निगल नहीं पाते. तो ऐसी सिचुएशन में जब इस तरह की ब्रीदिंग करते हैं तो वो जो म्यूकस है वहां पे अटका हुआ वो फ्री हो जाता है, डिसलॉज हो जाता है और उसे बाहर निकालना आसान हो जाता है. सो दिस काइंड ऑफ ब्रीदिंग इट ऑल्सो एक्टिवेट्स ऑल द ग्लैंड्स, जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, जो हमारे साइनसेस हैं, यहाँ पे साइनसेस हैं, यहाँ पे साइनसेस हैं, और जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, हमारे टॉन्सिल्स हैं, गले में हमारे थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है, जो वोकल कॉर्ड्स हैं, ये सारे एक्टिवेट होते हैं इस तरह की ब्रीदिंग के साथ में और उनमें से सारा कचरा बाहर निकलता है. So let's try this together. We will do 5 rounds. You can normally do 10 rounds and sets 2 to 3 sets of this breathing. So let's start. करें साथ में, all ready to start? Shumi thumbs up. Shumi thumbs up. थोड़ा interactive बनाए इसको. Yes. Okay. So let's start. Yeah. Round 1. Breathe in. नासिका द्वारा इनहेल करें, स्पाइन को सीधा रखें और एक्सहेल करें मुंह से. अच्छी सी आवाज निकालते हुए आंखें बंद रखें और फील करें कि वाइब्रेशंस कहाँ कहाँ आपको आ रहे हैं और कौन से मसल स्ट्रेच हो रहे हैं साथ में. वंस अगेन, इनहेल, एक्सहेल, inhale. I can see very nicely everybody is doing. Exhale, strong, feeling the vibrations और लंबी सांस बाहर छोड़ें. Inhale, one more round. Exhale. And one more round. Inhale. Exhale.
ध्यान रहे इसमें आपको जीभ बाहर नहीं निकालनी है, सिर्फ मुंह को खोलना है और अच्छा सा प्रेशर लोअर जॉ पे लगाना है। हाँ, मैंने कई जनों को देखा जीभ भी बाहर निकाली थी। सो आई कैन सी पीपल नॉटिंग ऑल्सो। हाँ हाँ बोल रहे हैं। ओके, सो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जीभ बाहर जब निकालेंगे तो दूसरे और दो टेक्निक्स हैं हमारे ब्रीदिंग के, जिसको डॉग ब्रीदिंग कहते हैं और लायन ब्रीदिंग कहते हैं। तो वो जो लायन ब्रेथ करेंगे और जो डॉग ब्रीदिंग करेंगे, उसमें हम जीभ बाहर निकाल के ब्रीदिंग करेंगे। इसमें आपको जीभ अंदर ही रखनी है और सिर्फ लोअर जॉ, दिस पार्ट ऑफ योर फेस, यू हैव टू फोकस ऑन दैट एरिया। और यहाँ का जो गले के जो सारे ऑर्गन्स हैं, प्लस जो आपके सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, आपके पैरानेजल साइनसेस हैं, इन सबको क्लियर करने में ये ब्रीदिंग बहुत हेल्पफुल है। ऑलराइट, so yeah, once again you can do 10 breaths and you can repeat in 2 to 3 sets again early in the morning। सुबह में जब ब्रश करते हैं तो साथ ही साथ आप ये भी कर लें, श्वसन मार्ग शुद्धि भी कर लें, ये भी कर लें, तो आपका पूरा सुबह सुबह ही पूरा आपका नेजल पैसेज एंड नेसोफेरिंजियल एरिया इतना पूरा क्लीन हो जाएगा। इसके बाद the next round that we take is candle blow breathing। हाँ, जो कैंडल ब्लो ब्रीदिंग करेंगे उसमें हम, आप समझें कि आपसे काफी दूर एक मोमबत्ती पड़ी है, लाइटेड मोमबत्ती, लाइटेड कैंडल, और आपको उसको फूंक लगा के आपको अपनी जगह से आगे नहीं जाना है, वहीं पे खड़े रहकर आपको उसको ब्लो आउट करना है। तो हाउ डज दैट हैपन? सो नासिका से ब्रीद इन करेंगे और लम जोर की एक फूंक लगाएंगे, इतनी जोर से कि वो मोमबत्ती हम बुझा पाए। ओके, सो जब इस तरह की हम ब्रीदिंग करेंगे, आप नोटिस करेंगे, वी विल डू इट टुगेदर। आप नोटिस करेंगे कि आपके पेट के मसल्स बहुत स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। वी आर डूइंग एक्टिव एक्सलेशन इन दिस, स्ट्रॉन्ग हम एक्सेल कर रहे हैं। तो ये एक्सलेशन में आपके पेट के मसल्स बहुत स्ट्रांगली यूज होंगे, चेस्ट के मसल्स बहुत स्ट्रांगली यूज होंगे, नेक के मसल्स बहुत स्ट्रांगली यूज होंगे, और आपकी जॉ जो है ये भी स्ट्रांगली यूज होगी, मुंह आपका स्ट्रांगली यूज होगा। ओके, सो सारे मसल्स पर हम एक साथ में काम कर रहे हैं विद दिस काइंड ऑफ ब्रीदिंग। दिस इज कॉल्ड अ कैंडल ब्लो ब्रीदिंग। ओके, सो शुरू करें। ऑल रेडी टू स्टार्ट टुगेदर? शो मी थम्स अप। ओके, फाइन, चले। सो आंखें बंद करें, इफ पॉसिबल ब्रीद इन करें, एंड इतना स्ट्रॉन्ग जाए कि आपको पूरा अंदर हलचल मच जाए और आपकी पूरी ताकत लगा के आप एक्सेल करें। ऑलराइट, सेकेंड राउंड, breathe in through your nostrils and blow out nice and strong। चेस्ट के जो ब्रीदिंग के मसल्स हैं इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, इससे उनको एक्सरसाइज मिलती है। आप अपनी क्षमता के हिसाब से अपनी ताकत लगाते हुए करें, डू नॉट फोर्स योर सेल्फ टू डू। ओके, सो आप इन केस यू आर गोइंग थ्रू एन इन्फेक्शन, तो कई बार ऐसे होता है कि बॉडी में ताकत नहीं होती है, तो ऐसे समय पर आप जितना कर सकते हैं उतना उस हिसाब से आप करें। सो प्लीज जज योर सेल्फ, प्लीज मेक नोट ऑफ योर ओन कैपेसिटी एंड देन डू दीज practices because these are a little stronger ones। उसके बाद में हम थोड़ी सॉफ्ट प्रैक्टिसेस पर आएंगे, पहले हम थोड़ी स्ट्रॉन्ग वाली प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। ऑलराइट, सो थर्ड राउंड, इनहेल, सांस लें और पूरी ताकत लगाते हुए ब्लो आउट, नाइस एंड स्ट्रॉन्ग। वन मोर राउंड, इनहेल and blow out, nice and strong, and one more round, inhale, exhale, blow out, nice and strong। Okay, बहुत सारे videos बंद हैं, so I'm not able to see everyone, but I would appreciate if you put on your videos so that I know what you are doing, whether it's going correct or it's not going correct। Okay, so हमने 5 बार ये breathing करी, इसको आप 5, 7, 10 बार आप अपनी क्षमता के हिसाब से 2 or 3 sets you can do of this breathing।
एंड एज यू ऑल मस्ट हैव एक्सपीरियंस, जिन्होंने जिन्होंने किया साथ में उन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा कि अंदर से पेट से एक अच्छा सा खिंचाव महसूस होता है, चेस्ट के मसल्स में एक अच्छा सा स्ट्रेच खिंचाव महसूस होता है, एक टाइटनेस महसूस होता है व्हेन यू आर थ्रोइंग आउट। सो इतना फोर्स के साथ आप जब थ्रो आउट करेंगे तो नेचुरली बॉडी को अंदर से क्लीन होना ही पड़ेगा, अंदर से सारी चीजें कचरा बाहर निकालना ही पड़ेगा। सो वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड हियर, 70% ऑफ आवर बॉडीज वेस्ट, बॉडी में जो कचरा होता है जिसे हम निकालते हैं बाहर थ्रू अवर यूरिन, थ्रू अवर स्टूल्स, मोशन पास करते हैं और बॉडी को जो नहीं चाहिए वेस्ट मटेरियल है उसे बाहर निकालते हैं, तो 70% ऑफ द बॉडीज वेस्ट इज रिमूव थ्रू रेस्पिरेशन। जो सांस छोड़ते हैं उसमें से हम बॉडी का 70% कचरा जो गैसियस फॉर्म में होता है उसे हम बाहर निकालते हैं, सलाइवा के फॉर्म में वो बाहर निकलता है, म्यूकस के फॉर्म में वो बाहर निकलता है और गैस के फॉर्म में वो बाहर निकलता है। मींस अलोंग विद द कार्बन डाइऑक्साइड दैट यू एक्सहेल, 70% ऑफ अदर गैसेस आर आल्सो रिलीज्ड फ्रॉम द बॉडी। सो जितना ये प्रैक्टिस करेंगे स्ट्रांगली उतना आपका बॉडी अंदर से क्लीन रहेगा। ऑलराइट, सो नाउ वी गो टू द नेक्स्ट प्रैक्टिस। ओके, सो नेक्स्ट प्रैक्टिस इज बेली ब्रीदिंग। नाउ बिकॉज ये हमने स्ट्रॉन्ग ब्रीदिंग करी है तो अब बेली के मसल्स को थोड़ा सा हम इजी जाने देंगे और इसको हम शिवलिंग मुद्रा के साथ में करेंगे। सो शिवलिंग मुद्रा क्या है? ओके, सो शिवलिंग मुद्रा के लिए आप अपने लेफ्ट हैंड को पकड़ें इस तरह से। आई एम जस्ट शोइंग यू द मुद्रा फर्स्ट एंड देन वी विल डू द ब्रीदिंग इन दिस मुद्रा। लेफ्ट हैंड को पकड़ें, अंगूठा ऊपर की तरफ, यू कैन ऑल सी। ओके, नाउ राइट हैंड की फर्स्ट टू फिंगर्स, द इंडेक्स फिंगर एंड द थंब, उसको लेफ्ट हैंड के अंगूठे पर रैप अराउंड कर लें इस तरह। कैन यू सी? थंब ऑफ माय लेफ्ट हैंड and my right hand index finger and thumb I am wrapping around. I am clasping my thumb, left thumb with my first two fingers. Okay, अब बाकी की उंगलियां खोल दें और बाकी की उंगलियों को इस तरह से क्लास्प कर दें लाइक दिस। सो आपका लेफ्ट अंगूठा ऊपर रहेगा और बाकी की उंगलियां इंटरलॉक रहेंगी लाइक दिस, और राइट हैंड की पहली दो उंगलियां आपकी लेफ्ट अंगूठे के गोल रहेंगी, रैप अराउंड रहेंगी। राइट, शो मी, सब ऊपर पकड़े तो मुझे दिखे। यस 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 यस, ओके, जिनके जिनके वीडियोस ऑन है मैं देख पाऊंगी। ओके, फाइन, नाइस, ओके, सो ऑलमोस्ट एवरीबॉडी गॉट इट। ऑलराइट, सो दिस इज कॉल्ड शिवलिंग मुद्रा। शिवलिंग मुद्रा इज वन ऑफ द एक्सीलेंट मुद्रा, बॉडी में हीट जनरेट करती है। खांसी, सर्दी, जमा हुआ कफ, अगर अंदर से बॉडी वार्म होता है तो ये जमा हुआ कफ बाहर आसानी से निकल सकता है। राइट, सो स्पेशली इन कोल्ड्स, कॉफ्स, फीवर्स, स्पेशली इन निमोनियाज, दिस मुद्रा इज डन। एनी काइंड ऑफ फीवर विच इज इन्फेक्टिव, किसी इन्फेक्शन की वजह से अगर बुखार आता है और उसे बाहर निकालना है, अंदर से जमा हुआ जो वायरस है, बैक्टीरिया है, उसे बाहर निकालना है, तो शिवलिंग मुद्रा इज वन ऑफ द एक्सीलेंट मुद्रा। लेकिन इसका एक लिमिटेशन भी है, इसको 3 से 5 मिनट ज्यादा से ज्यादा करें, उससे ज्यादा इस मुद्रा को ना करें। वाई? बिकॉज बहुत ज्यादा हीट भी जनरेट हो जाती है अंदर, तो भी उसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। सो दिस शिवलिंग मुद्रा हैज टू बी डन जस्ट फॉर 3 to 5 minutes डिपेंडिंग ऑन हाउ मच यू कैन टेक इट। तो आज की अभी की जो सेशन में हम बेली ब्रीदिंग करेंगे वो इस शिवलिंग मुद्रा के साथ में करेंगे। ऑल्सो दिस शिवलिंग मुद्रा हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द रेस्पिरेटरी फंक्शन, ब्रीदिंग के फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए, एनहांस करने के लिए, ब्रीदिंग की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, लंग की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए ये बहुत ही अच्छी मुद्रा है। ऑल्सो जस्ट 1 मिनट, डाइजेस्टिव फायर बढ़ाने के लिए, बिकॉज ऑलरेडी बॉडी में हीट जनरेट करती है, तो जो डाइजेस्टिव फायर है जिसे जठराग्नि बोलते हैं, जो डाइजेशन में हेल्प करेगी, तो इस तरह की जो फायर है जठराग्नि, उसे प्रज्वलित करने में शिवलिंग मुद्रा इज वन ऑफ द बेस्ट मुद्रा। सो इफ somebody is having digestion problems, जिनका स्लो है मेटाबॉलिज्म, थायराइड के प्रॉब्लम्स हैं जिसमें मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, तो ऐसे टाइम पे अगर आप शिवलिंग मुद्रा करते हैं 3 से 5 मिनट,
So it is one of the best mudras to increase your metabolism, to improve your digestion. अगर मोटापा है तो शरीर को में से कोलेस्ट्रॉल को बर्न करने के लिए, कई लोग पतले होते हैं लेकिन उनमें कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है, अगर ब्लड रिपोर्ट निकालेंगे तो उनका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा आता है. सो ऐसी सिचुएशंस में अगर ये शिवलिंग मुद्रा आप लगाते हैं तो नेचुरली कोलेस्ट्रॉल अंदर से बर्न होना शुरू होता है और वो लेवल्स आपके नॉर्मल आने शुरू होते हैं. लेकिन इसको रेगुलर प्रैक्टिस करना है, 3 to 5 minutes, not more than this, every day. So you start seeing the results in such situations. All right. और yes, one more thing I want to add here कि ये सारी practices SOS इमरजेंसी यूज के लिए नहीं है. इन सारी प्रैक्टिसेस को आप रेगुलर करें, रोज करें, पहले से करें. If you have not been doing, start from now and be regular in your practice. Only then you start seeing the result. वो रिजल्ट ऐसा आता है कि अगर आपको कोई तकलीफ आई तो आप झट से उसमें से बाहर निकल जाएंगे. ज्यादा से ज्यादा तकलीफ आएगी ही नहीं, लेकिन तकलीफ नहीं आने की कोई गारंटी नहीं होती है. अगर आई तो उससे आप जल्दी से बाहर निकल पाएंगे, इजीली बाहर निकल पाएंगे विदाउट एनी मच इश्यूज. यू कैन अगेन गेट बैक योर हेल्थ क्विकर. ओके, सो ये मुद्रास इस तरह से फास्ट रिकवरी में हमें हेल्प करती हैं. ऑलराइट, so this is Shivling Mudra and we are doing just 5 rounds of belly breathing in this mudra. So इस मुद्रा को आप अपने लैप पे लगा दें, आराम से बैठे, स्पाइन को सीधा रखें, शोल्डर्स को रिलैक्स रखें, आंखें बंद करें, एक सुंदर सी स्माइल आने दें चेहरे पर और अब ब्रीथ करें. जो ब्रीथ करें वो हवा बेली में, पेट को फुलाते हुए ब्रीथ करें. सो यू आर यूजिंग योर डायफ्राम एज वेल. In your respiration, you are activating your diaphragm. Breathe in करें, पेट में पूरी हवा भरें, पेट को पूरा फुलाते हुए. एक्सेल करें, पेट को ढीला छोड़ें और हवा अपने आप बाहर निकलने दें. Once again, inhale. Feel the complete expansion of your belly. और पेट जहां हाथ है वहां तक टच हो जाए. धीरे से सांस छोड़ें, अपने आप पेट को रिलीज होने दें. You are activating your diaphragm muscle with this kind of breathing, belly breathing. और बहुत ही relaxing breathing है. One more round. Inhale and exhale. One more round. Inhale and exhale. हाथ शिवलिंग मुद्रा में. One more round. Inhale and exhale. Keep your eyes closed for a few seconds and see how it feels. And then slowly open your eyes. धीरे से अपनी आंखें खोलें. Okay, so right now we have done just 5 breaths in Shivling Mudra, but if you continue holding this mudra for around 3 minutes, you will actually feel that heat अंदर, वो energy, वो heat, वो warmth feel होगी. Okay, so I'm seeing a lot of people nodding अभी भी. So हुआ? ये 5 राउंड में भी वो heat generate हुई? Okay, so I see lot of thumbs ups also. Great. Okay, so इसको अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली बहुत बहुत फायदे आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे. ओके, सो नेक्स्ट दैट वी टेक अप इज पदिधार आसन. नेक्स्ट है पदिधार आसन. ये एक आसन है लेकिन बहुत ही इफेक्टिव आसन है और ब्रीदिंग के साथ में हम इसको जोड़ रहे हैं. नाउ व्हेन कई बार ऐसे होता है सुबह सुबह आप उठे तो कोई एक नासिका आप नोटिस करेंगे कोई चालू है, ज्यादातर लेफ्ट वाली चालू रहती है सुबह सुबह. और फिर जैसे दिन चढ़ता है आगे तो आप नोटिस करेंगे कि राइट वाली नॉस्ट्रिल ज्यादा एक्टिव हो जाती है. कभी राइट वो आप अवेयरनेस के साथ ही आप पिकअप कर पाएंगे. अगर आप अवेयर हैं आपको पिकअप कर पाएंगे. कभी राइट चलती है, कभी लेफ्ट चलती है, कभी राइट होती है, कभी लेफ्ट होती है. सो ये नॉर्मल नेचुरल रिदम है हमारे बॉडी का. एवरी 1.5 आवर, एवरी 1.5 घंटे से एक नाड़ी एक्टिव होती है.
and that depends on how your hormones inside are. That depends on how well you have slept. That depends on how well you have eaten. That depends on how the temperature outside is. ये सारी चीजों पर डिपेंड करते हुए आपकी कोई भी एक नाड़ी बारी बारी से चलती है. तो जब लेफ्ट नाड़ी चलती है इसे हम चंद्र नाड़ी कहते हैं और द ईडा नाड़ी. और जब राइट नाड़ी चलती है तो राइट नाड़ी इज कॉल्ड द पिंगला नाड़ी और द सूर्य नाड़ी. ओके, और इन दोनों में बैलेंस लाना यही हमारा काम है थ्रू योगा. ओके, थ्रू प्राणायाम, थ्रू आसन, इन दोनों नाड़ियों में हम बैलेंस लाते हैं ताकि दोनों नाड़ियों से एक साथ हम ब्रीद इन और ब्रीद आउट कर पाए और फ्री फील कर पाए. जितनी दोनों नाड़ियां एक्टिव होंगी उतना हम फ्री फील कर पाएंगे. सो पतिधर आसन इज डन स्पेशली टू ओपन अप, टू बैलेंस दीज टू नाड़ीज. नाउ राइट हैंड आपका, राइट हैंड लेफ्ट आर्मपिट में. So you open up your left hand and put your right hand in your left armpit and your left hand you put it in your right armpit. इस तरह से कि आपकी उंगलियां बराबर अंदर आए. ऐसे नहीं, बाहर नहीं जानी चाहिए, ऐसे अंदर आनी चाहिए. सो आर्मपिट का जो एरिया है उसी में ये उंगलियां अंदर प्रेस करनी है. ओके, सो यू कैन सी मेरी बाहर नहीं आ रही है उंगलियां. जब मैं प्रेस करती हूँ, मेरे एल्बोज नीचे करती हूँ, तो मेरे हाथ बिल्कुल अंदर हैं. और इस आसन के साथ आप ये आप जब घर पे प्रैक्टिस करें तब आप ये अनुभव कीजिएगा. जब राइट हैंड से आप लेफ्ट को प्रेस कर रहे हैं तो दिस इज गोइंग टू एक्टिवेट योर राइट साइड. व्हेन द लेफ्ट साइड इज प्रेस्ड द राइट साइड गेट्स एक्टिवेटेड एंड व्हेन द लेफ्ट साइड इज व्हेन द राइट साइड इज प्रेस्ड आपकी ऑपोजिट वाली नाड़ी एक्टिवेट होगी. तो कई बार अगर आप ये एक्सपीरियंस करते हैं कि कोई एक ही खुली है, दूसरी नहीं खुल रही, नहीं चल रही है, आपने थोड़ी नाड़ी शुद्धि भी किया तो भी नहीं खुल रही है, तो व्हेन यू डू दिस काइंड ऑफ ब्रीदिंग, सिर्फ एक साइड से, अगर आपका लेफ्ट बंद है तो आप देखें इस तरह से 10 से 12 सांस लेंगे, आपकी लेफ्ट साइड खुल जाएगी. Why? Because there are acupressure points in the armpit. So opposite वाली नाड़ी को खोलने का ये काम करती है. Also there are lymph nodes in the axillary area in the armpits, जो बहुत easily lymphatic drainage को improve करने के लिए, immunity build up करने के लिए जो lymphatic drainage जरूरी है वो ये पतिधर आसन के साथ आप कर पाते हैं. So when we are putting both the arms inside, we can feel a balance on both the sides. At the same time, we can feel a balance in both the nostrils, and we are improving the lymphatic drainage through this area, through the axillary lymph nodes. अब थोड़ा मैं मेडिकल भी यूज कर रही हूँ ताकि आप समझ पाए कि इससे फायदे क्या हो रहे हैं. तो इम्यूनिटी को बिल्ड करने के लिए, बॉडी में से कचरा निकालने का काम लिम्फेटिक ड्रेनेज करती है. जो डेड सेल्स हैं, जो बाहर से वायरसेस, बैक्टीरिया पूरा टाइम हमारे अंदर जाते हैं. ऐसे नहीं कोरोना तो अभी आया, लेकिन अदरवाइज भी पूरा टाइम हम जो श्वास लेते हैं तो उसमें साथ में थोड़े से बैक्टीरिया, वायरसेस अंदर जाते हैं. और बॉडी की ये क्षमता नेचुरली होती है कि इससे फाइट कर पाए. वो बॉडी की नेचुरल इम्यूनिटी होती है जो इतने सालों में हमने एक्सपीरियंस किया है. बॉडी उससे फाइट कर लेता है. और जो फाइट करते हैं तब जो कचरा बनता है, थोड़ी तो लड़ाई, जैसे आप देखेंगे देश में भी जो एट द बॉर्डर लड़ाई होती है तो सोल्जर्स उस तरफ के भी इस तरफ के भी थोड़े से तो अपनी जान खोते हैं. तो नाउ इसी तरह भी जो फाइट होती है तो थोड़े से डेड सेल्स होते हैं, तो व्हाइट ब्लड सेल्स विच डाई इन द प्रोसेस. एट द सेम टाइम द कचरा जो फाइट की वजह से जो डंपिंग होती है, वो जो कचरा होता है उसे भी क्लीन करने का काम वो लिम्फेटिक ड्रेनेज करती है. सो दिस लिम्फेटिक ड्रेनेज वी आर इम्प्रूविंग विथ पतिधर आसन. ओके, इस तरह से ये क्लीनिंग करेगा, अंदर से डिटॉक्स करेगा और एट द सेम टाइम ब्रीदिंग के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करेगा और दोनों नाड़ियों को बैलेंस करेगा. सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज व्हेन वी ब्रीद इन वी आर गोइंग टू लिफ्ट आवर एल्बोज अप एंड व्हेन वी ब्रीद आउट वी आर गोइंग टू प्रेस द एल्बोज डाउन. अब जब प्रेस करेंगे, एक्सेल करेंगे, तब हाथों की उंगलियों को अंदर प्रेस करें जिससे वो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बनते हैं और सारे सिस्टम्स आपके एक्टिवेट होते हैं. ऑलराइट,
So we will do 5 rounds like this. इनहेल करते हुए एल्बोज को अप ले, जितना ऊपर ले जा सकते हैं ले जाएं, और एक्सेल करते हुए एक अच्छे से प्रेशर बनाते हुए एल्बोज को अंदर प्रेस करें और उंगलियों को अंदर प्रेस करें. Okay, you can do this with your eyes closed. We will do 3 rounds together. Inhale, take your elbows up and breathe nice. Fill your chest fully with a nice deep breath and exhale. And bring your elbows down. Press into the chest as nicely as you can. Fingers को अंदर press करें in your armpits. अच्छे से press करें. And one more round. Inhale. Take your hands up. Not hands, sorry, elbows up. Exhale करते हुए elbows down and press inside. Your fingertips press into your armpits. One more round. Inhale. And exhale. And हाथों को रिलीज करते हुए for few seconds keep your eyes closed and observe. जब आंखें बंद रखेंगे तभी माइंडफुल रहेंगे, तभी इन सारी प्रैक्टिसेस के बेनिफिट्स आप महसूस कर पाएंगे. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन बिटवीन आप फ्यू सेकंड्स के लिए आंखें बंद रखें. ऑल राइट, सो आई सी अ थम्स अप. थैंक यू. ओके, और इन बिटवीन इफ यू रिक्वायर प्लीज कीप सिपिंग लिटिल वार्म वाटर. जैसे मैं भी अभी पी रही हूँ. एक छोटा सा 5 सेकंड्स का ब्रेक. पानी हो सके उतना वार्म लें, बहुत गर्म नहीं, बहुत ठंडा नहीं. अगर वार्म नहीं जम रहा है तो यू कैन जस्ट टेक नॉर्मल टैप वाटर, सॉरी नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाटर, मटके का पानी. लेकिन फ्रिज का ठंडा इस समय पर ना पिए. ओवरऑल हेल्थ के लिए भी फ्रिज का ठंडा पानी इज नॉट गुड. सो यू कैन जस्ट कीप अ नाइस पॉट, अच्छा सा मटका रखें घर पे और ठंडा पानी पिए, उसका नेचुरल कूल वाटर पिए. ओके, नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट राउंड. पदिधर आसन के बाद अब वी आर टेकिंग अप भस्त्रिका प्राणायाम. सो भस्त्रिका के बहुत सारे वेरिएशंस हैं, लेकिन अभी पर्टिकुलरली हम जो भस्त्रिका प्राणायाम कर रहे हैं वो टैपिंग के साथ में भस्त्रिका प्राणायाम है. सो भस्त्रिका में एक्टिव इनहेलेशन और एक्टिव एक्सहेलेशन. सो नॉर्मली कोई भी वेरिएशन में आप देखेंगे जितना इनहेल कर रहे हैं उतना ही आप एक्सहेल कर रहे हैं और एक्टिवली कर रहे हैं. चेस्ट के सारे मसल्स को आप यूज कर रहे हैं, बेली के सारे मसल्स साथ में कोऑर्डिनेट करते हैं सो दैट योर चेस्ट कैन मूव बेटर, योर इंटरकॉस्टल मसल्स कैन मूव बेटर, योर डायफ्राम कैन मूव बेटर, योर स्केलीन, योर स्टर्नोक्लिडोमास्टॉइड, ये जो सारे मसल्स हैं, ब्रीदिंग के मसल्स हैं, ये सारे ज्यादा एक्टिवेट करने के लिए हम भस्त्रिका ब्रीदिंग करते हैं. जब इस तरह की हम ब्रीदिंग करते हैं तो नेचुरली मसल्स को हम स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, और मसल्स जब स्ट्रॉन्ग बनाएंगे तब कोई भी आपातकालीन हो, कोई भी इमरजेंसी हो, नेचुरली आपके बॉडी की क्षमता बढ़ी हुई रहेगी बिकॉज आपके मसल स्ट्रॉन्ग हैं. तो फ्रीली जो ऑक्सीजन अवेलेबल है वो बिकॉज आपकी क्षमता नहीं है इसलिए आप नहीं ले पाए, ऐसी सिचुएशन खड़ी ना हो. आपके मसल्स अंदर से स्ट्रॉन्ग हो ताकि जो फ्रीली अवेलेबल ऑक्सीजन है, सिलेंडर वाला ऑक्सीजन हमें ना लेना पड़े, नेचुरली हम अपनी ब्रीदिंग को मेंटेन कर पाए. ऑलराइट, सो नाउ दिस भस्त्रिका दैट वी आर गोइंग टू डू इस तरह से हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे, जहां पे हम थोड़ी सी स्ट्रेंथ लगाएंगे एल्बो को अंदर पुश करने में, अंदर चेस्ट पे पुश करने के लिए. इससे क्या होगा, जो चेस्ट के लोअर लोब्स में जहां पे कफ बलगम जम जाता है उसे बाहर निकालना, उसे डिसलॉज करना आसान हो जाएगा. ऑलरेडी ब्रीदिंग फास्ट कर रहे हैं तो अंदर हीट जनरेट होती है. विद दिस हीट द म्यूकस गेट्स डिसलॉज. सो स्पेशली दीस डेज वी आर सीइंग निमोनियाज, लॉट ऑफ निमोनियाज जिसमें लोअर लंग्स इन्वॉल्व होते हैं, और जो पैचेस आते हैं एचआरसीटी पे वो भी लोअर लोब्स को इन्वॉल्व दिखाते हैं निमोनियाज में. तो ज्यादातर बिकॉज ऑफ ग्रेविटी लोअर लोब्स हमारे इन्वॉल्व हो जाते हैं.
नीचे की तरफ कफ जमा हो जाता है। तो इसे निकालने के लिए, इसे डिसलॉज करने के लिए इस तरह का भस्त्रिका प्राणायाम हम कर रहे हैं। ओके, वन वर्ड ऑफ कॉशन, अगर किसी को हाइपरटेंशन है, किसी को हार्ट की बीमारी है, तो बहुत स्लो करें। नहीं करना ऐसा, क्षमता के हिसाब से करें और स्लो जाएं। ओके, सो राइट नाउ वी विल टेक अप 5 राउंड्स बिकॉज़ आई थिंक टाइम भी टिक टिक फटाफट कर रहा है। सो वी विल टेक 5 राउंड्स। आ जाएं, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें एंड ब्रीथ। 3 4 5 एंड रिलैक्स। फ्यू सेकेंड्स के लिए आंखें बंद रखें। देखो, स्ट्रॉन्ग हमने ब्रीद इन और ब्रीद आउट दोनों किया है, तो थोड़ा हाइपर वेंटिलेशन हो जाता है, आप बॉडी में हीट ज्यादा फील कर पाएंगे और शायद थोड़ी सी डिजीनेस भी फील कर पाए। अगर यू आर डूइंग मोर राउंड्स लाइक से 20 राउंड्स और 30 राउंड्स, देन प्रोबेबली यू विल फील अ लिटिल डिजी ऑल्सो। तो इस समय आंखें बंद रखें और बॉडी को सेटल होने दें। और कहीं पे भी अगर डिस्कम्फर्ट महसूस होता है तो इमीडिएटली आप इस टेक्निक को स्टॉप कर दीजिएगा। तो डू नॉट डू इरेशनली, ये मैंने पहले ही ग्रुप पे भी डाला है। कोई भी प्रैक्टिस को इरेशनली प्रैक्टिस ना करें। ऑलराइट, स्पेशली हाइपरटेंशन, स्पेशली हार्ट डिजीज, विमेन इन देयर पीरियड्स, मेंसेस अगर चालू हो तो भी संभाल के करें। आप कर सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन स्लो जाएं, अपनी क्षमता के हिसाब से जाएं। ऑलराइट, now after this we are doing diaphragm tapping. Okay, so यहाँ पे मैं थोड़ी दूर जा रही हूँ ताकि आप मुझे देख पाए। हम क्या करेंगे, दोनों हाथों को with the palms we are going to tap here around the diaphragm area. diaphragm वो बड़ा सा मसल है जो चेस्ट को और एब्डोमेन को सेपरेट करता है, अपर चेस्ट एंड लोअर एब्डोमेन। उसके बीच में एक ऐसे हॉरिजॉन्टल स्लीपिंग लाइन में एक मसल है, बड़ा सा मसल है डायफ्राम, जिसके बीच में एक होल होता है जहां से सारे आर्टरीज और वेन्स, हार्ट में से निकलने वाली आर्टरीज नीचे की तरफ जाती हैं, नीचे ब्लड सप्लाई करने के लिए। नीचे वाले वेन्स जो होते हैं ऊपर ब्लड ले आते हैं, तो वो वेन वहां से पास होती है टू टेक इम्प्योर ब्लड इनटू योर लंग्स टू प्योरीफाई। ओके, सो ये जो डायफ्राम मसल है उस पे हम थोड़ी सी टैपिंग कर रहे हैं, जिससे आपका चेस्ट भी एक्टिवेट होता है और जिससे आपका एब्डोमेन भी एक्टिवेट होता है और इससे सारे ऑर्गन्स को एक अच्छा सा मसाज मिलता है। तो जो लंग के लोअर लोब्स में अगर म्यूकस स्टकअप है तो उसे भी डिसलॉज होगा। और पेट में जो सोलर प्लेक्सस है, अब सोलर प्लेक्सस जो नेवल चक्र है, हमारा नाभि का जो एरिया है, वो उद्भव स्थान है 72,000 72,000 नाड़ियों का। यहीं से 72,000 एनर्जी चैनल्स हमारी स्टार्ट होती हैं और पूरे शरीर में फैली हुई रहती हैं। सो जब इस तरह की हम टैपिंग करेंगे तो हम इस सोलर प्लेक्सस को भी एक्टिवेट कर रहे हैं। एट द सेम टाइम वी आर एक्टिवेटिंग द चेस्ट organs also, the lungs, the heart, everything is getting activated. And with this solar plexus, the energy channels that are spread throughout the body are also getting cleaned. They are getting more energized. They are getting more blood supply and better blood supply because you are breathing very slowly. Okay, so यहाँ पे हम क्या करेंगे, you can see me once. Inhale हम पहले करेंगे through your nostrils. Inhale कर लेंगे और जब exhale करेंगे तब इस तरह से जेंटल, बहुत हल्की हल्की हम टैपिंग करेंगे एक्सेल के साथ में। पूरा एक्सेल होने तक, पूरी सांस छूटने तक इस तरह से हम टैपिंग करेंगे और फिर दूसरी सांस लेंगे, इनहेल, उस वक्त टैपिंग नहीं करेंगे, इनहेल के टाइम पे टैपिंग नहीं करेंगे एंड एक्सेल। राइट, सो लेट्स स्टार्ट, साथ में करेंगे। You do 3 rounds like this. फिर आप जब घर पे करें, अपने आप प्रैक्टिस करें तो आप ज्यादा करें। You can do at least 10 times and you can do 2 sets of 10 each. So let's start. Inhale करें and exhale करते हुए
Tap, 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 tap. Very, very gentle tapping. jerk ना लगाएं, जोर से ना मारें. अपना ही शरीर है, संभाल के उस पर टैपिंग करें. जैसे तबले बजाते हैं उस तरह से नहीं बजाना है. Okay, and one more round. Inhale and exhale करते हुए हल्की हल्की gentle tapping. Tap 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 tap. पूरी सांस छूटने तक. And one more round. Inhale, गहरी सांस लें और exhale करते हुए once again tap 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 tap. And few seconds, keep your eyes closed and feel the benefits. Let the benefits register into your system. थोड़ी देर आंख बंद रखेंगे तभी वो सिस्टम को पहुंचती है, रजिस्टर होती है ब्रेन में कि हमने क्या अभी किया. और इसको रेगुलर करने से बहुत बहुत सारे फायदे आप अनुभव कर पाएंगे. ओके, नाउ स्लोली ओपन योर आईज. ओके, नेक्स्ट हम कपालभाति ले रहे हैं. तो कपालभाति आई बिलीव बहुत ही पॉपुलर प्राणायाम है. कपालभाति एंड भस्त्रिकार वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्राणायाम. और रामदेव बाबा को सबने देखा होगा, कभी ना कभी फॉलो करते होंगे. सो Kapalbhati is like everybody knows, but still, if somebody does not know, I will just show. Kapalbhati pranayam is one of the kriya. It is a शुद्धि क्रिया, बॉडी को क्लीन करने वाली क्रिया है. कपालभाति का नाम कपाल, forehead, भाति means to shine. Kapalbhati is shining forehead. So ना सिर्फ बॉडी को डिटॉक्स करने में, बल्कि अपने माइंड को भी डिटॉक्स करने का काम करता है कपालभाति. जो कॉन्टेक्स्ट फॉर सारी प्रोसेसिंग होती है. आप कोई भी थॉट, कोई भी दिमाग में विचार आता है, कोई भी थॉट आता है, उस पर आप प्रोसेस करते हैं. किसी ने कुछ बोल दिया, उस पर आप प्रोसेस करना शुरू कर दे, उस पर एनालाइज करें, इसने ऐसा क्यों बोला, क्या हुआ, क्यों मुझे ही बोला. तो ये सारे जो हम थिंकिंग प्रोसेस उसके ऊपर लगाते हैं, तो ये सारा काम हमारा फ्रंटल कॉर्टेक्स करता है. कोई अच्छा सा विचार आया, उस पर हम काम प्रोसेसिंग करते हैं, उस पर हम एनालाइज करते हैं, वो भी फ्रंटल कॉर्टेक्स इज डूइंग ऑल दिस वर्क. So whatever good thoughts or bad thoughts, whatever is happening in your mind is being processed by the frontal cortex. And the main job of Kapalbhati is to clear your body of the detox, of the unwanted stuff, and to mind of your unwanted thoughts. तो जो जरूरी नहीं है उसको क्यों पकड़ के रखना बॉडी के अंदर. सो कपालभाति हेल्प्स रिलीज ऑल दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, फिजिकली ऑल्सो, मेंटली ऑल्सो, इमोशनली ऑल्सो. ओके, सो यहाँ पे हम कपालभाति आज प्राण मुद्रा के साथ में करेंगे. प्राण मुद्रा, लास्ट 2 फिंगर्स आपकी फोल्ड करें और टिप ऑफ योर थंब पे लगाएं. लास्ट 2 फिंगर्स एंड थंब. ओके, okay, I see lot of mudra, everybody is doing the mudra, very good. Okay, so this mudra is called pran mudra. Pran mudra is like हमने जैसे शिवलिंग मुद्रा की, वैसे ही प्राण मुद्रा helps to fight infections faster. Okay, infection अगर बॉडी के अंदर आ गया, उसे इम्यूनिटी बिल्ड करके उसे उसके अगेंस्ट फाइट करना प्राण मुद्रा का काम है. It will help you boost your immunity and at the same time fight off all kinds of colds, coughs, fevers, infective fevers जो होते हैं, उसमें से बाहर निकालने का काम ये करता है. डाइजेस्टिव फायर को इंप्रूव करता है, जिससे अगर नीचे की तरफ से लूज मोशन के फॉर्म में अगर कचरा बाहर निकालना है तो वो भी निकालने में हेल्प करेगा. एट द सेम टाइम प्राण मुद्रा helps you fight off allergies also. So कई लोगों को डस्ट की एलर्जी होती है, फूड की एलर्जी होती है, सन की एलर्जी होती है. There are like more than 3000 reasons to get allergy in your body.
सो इन सारी एलर्जी से, और वो डिटेक्ट करना बहुत आसान नहीं होता कि किस चीज की एलर्जी है। तो जब आप प्राण मुद्रा रेगुलरली लगाते हैं तो प्रोबेबली इन 2 or 3 months यू विल सी अ बिग डिफरेंस इन योर फिजिकल कंडीशन। अगर बार बार आपको एलर्जीज हो रही है, डस्ट से हो रही है, या फॉर वट एवर रीजन बार बार अगर हो रही है, वेदर चेंज में सर्दी खांसी हो जाती है, तो अगर आप प्राण मुद्रा रेगुलरली लगाएंगे तो इससे भी आप बच पाएंगे। अगर होती भी है तो इंटेंसिटी इतनी नहीं होगी जितनी पहले होती थी। ऑलराइट, सो दिस इज प्राण मुद्रा एंड वी आर गोइंग टू डू कपालभाति इन प्राण मुद्रा। हाथों को आप प्राण मुद्रा लगाकर थाइस पर लगा दें आराम से, और एक बार मुझे देख लें। माई स्पीड इज गोइंग टू बी 1 per second फॉर एवरी स्ट्रोक। हम एक्टिव एक्सलेशन कर रहे हैं जिसमें पेट नेचुरली आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, अंदर जाएगा। इस तरह से यू कैन सी। आप फोकस करें नासिका पर, सिर्फ एक्सलेशन पर, पेट पर फोकस ना करें, और बॉडी को स्थिर रखना है। बॉडी को यूं यूं हिलाना नहीं है, बॉडी को स्टेडी रखना है, स्पाइन को स्ट्रेट रखना है। पेट अपने आप हिलेगा जब आप फोर्सफुल एक्सलेशन करेंगे। हाथों को प्राण मुद्रा में लगा दें, आंखें बंद करें, पहले एक छोटी सी सांस लें और शुरू करें। आई एम काउंटिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। We are doing only 20 strokes right now. स्पीड इस तरह की रखें, 1 per second की स्पीड। बहुत फास्ट ना जाए, आप जा सकते हैं बहुत फास्ट अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो यू कैन गो लिटिल फास्टर ऑल्सो, बट प्रेफरेबली कीप इट 1 per second स्पीड। इससे स्लो भी आप कर सकते हैं। जिनको हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, जिनको हर्नियास हैं, स्पेशली एब्डोमिनल सर्जरीज वगैरह करी हुई हैं, तो ऐसी सिचुएशंस में, पीरियड्स हैं तो ऐसी सिचुएशन में आप संभाल के करें। बिल्कुल नहीं कर सकते ऐसा नहीं है। कई बार हमें डॉक्टर्स बता देते हैं नहीं 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 कपालभाति नहीं करना है, नहीं 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 भस्त्रिका नहीं करना है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अपनी क्षमता के हिसाब से स्लो स्पीड पर जाएं, बहुत इंटेंस ना जाएं, तो आप कर सकते हैं। फायदे हर चीज के हैं, और इतने अच्छे अच्छे फायदे हैं कि आई थिंक एवरीबडी शुड डू दिस अनलेस अदरवाइज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। ऑलराइट, सो नेक्स्ट नाउ वी आर टेकिंग, आई होप यू आर ऑल नोटिंग डाउन, तो आप रेगुलर प्रैक्टिस इसको कर सकें। अगर आपके पास नोट्स होंगे तो आप उसे रेफर कर सकते हैं, वरना भूल जाएंगे। सेशन खत्म हो जाएगा, आप भूल जाएंगे कि हमने क्या किया था, अरे इसके बाद हमने क्या किया था, याद नहीं, भूल गए, तो सब गया फिर। सो प्लीज कीप नोटिंग। ओके, नेक्स्ट आफ्टर दिस, ओके नाउ वी आर डूइंग डॉग ब्रीदिंग। सो जो स्टार्टिंग में मुंह खोल के हमने हा ब्रीदिंग करी थी, तो उसमें काफी जनों ने टंग भी बाहर निकाली थी। So now is the time to remove your tongue out. We are going to do dog breathing now. So dogs को आपने देखा होगा अच्छे से बैठे मस्त रिलैक्स होते हैं तब उनकी ब्रीदिंग। आई विल जस्ट शो यू हाउ इट गोज। हाथ मेरे बहुत रिलैक्स्ड मैंने नीज पर रखे हैं, थाइस पर रखे हैं, और थोड़ा सा मैं आगे झुकी हूँ, थोड़ा सा इंक्लाइन। आई विल शो यू अ साइड व्यू ऑल्सो। ऐसे थोड़ा सा मैं आगे झुकी हूँ, और अब जीभ को बाहर निकालना है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, लाइक दिस। ओके, यहाँ पे स्ट्रेन नहीं आना चाहिए। सो जॉ पे आपका स्ट्रेन नहीं आना चाहिए। हल्की सी जीभ को बाहर निकालेंगे, मुंह को खुला रखेंगे। ओके, आई विल कम क्लोजर एंड शो यू इस तरह से। ओके, और हल्का सा आगे झुका हुआ रहेंगे, एंड वी आर गोइंग टू ब्रीथ नाउ। स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे, जस्ट सी मी। यू कैन डू 8 to 10 राउंड, 10 to 15 राउंड अपनी क्षमता के हिसाब से। अब देखेंगे पूरा पैसेज अंदर कूल फील करेगा। आपके चेस्ट के मसल्स अच्छे से मूव हो रहे थे, बेली के मसल्स अच्छे से मूव हो रहे थे, राइट? You can all try it out. We will do 2 rounds.
थोड़ा सा आगे झुकें, स्पाइन को सीधा रखें, जीभ को बाहर निकालें, हल्की सी बाहर निकालें, प्रेशर ना लगाएं जॉ पर, हल्का सा बाहर निकालें और थोड़ी सी फास्ट ब्रीदिंग करें। थोड़ी सी आवाज आएगी, आपने देखा होगा अगर डॉग्स को इस तरह से ब्रीथ करते हुए। रेस्पिरेटरी रेट हमने बढ़ा दी है इस तरह की ब्रीदिंग करके। सो आफ्टर say 10 or 15 breaths, you can just sit with your eyes closed और ब्रीदिंग को सेटल होने दे। थोड़ी देर तो आप नोटिस करेंगे ब्रेथ बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी बिकॉज ऑलरेडी हाइपर वेंटिलेशन हो गया है। तो अभी शरीर को ज्यादा जरूरत नहीं है, ब्रेन को पता है काफी ऑक्सीजन एक साथ में आ गया है, अभी हमें और जरूरत नहीं है। सो थोड़ी देर एक सहज कुंभक लग जाएगा आपका। कुंभक, कुंभक मीन्स रिटेंशन ऑफ ब्रेथ, अपने आप सांस आपकी अटक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। So for few seconds, you will notice that your breathing stops. And then, it, as soon as the body feels अब ऑक्सीजन चाहिए, अब ब्रेथ चाहिए, अब सांस चलानी है, तो अपने आप ब्रीदिंग शुरू हो जाएगी। So this is dog breathing. You can do 2 to 3 sets like this as per your capacity. 10 to 15 breaths in one round. ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए ऑक्सीमीटर पे अगर ऑक्सीजन कम आ रहा है, से 95 का कट ऑफ है, 95 के नीचे बोल रहे हैं, नहीं जाना चाहिए। अगर 95 के नीचे जा रहा है तो माइल्ड ब्रेथलेसनेस आपको महसूस होगी, 92 के नीचे जा रहा है तो मॉडरेट ब्रेथलेसनेस आपको महसूस होगी, 80 90 88 89 जा रहा है तो आपको अच्छी खासी ब्रेथलेसनेस महसूस होगी। लेकिन अगर ब्रेथलेसनेस नहीं भी है और ऑक्सीमीटर लो ऑक्सीजन दिखा रहा है, SpO2 लो दिखा रहा है, so it could be a state of happy hypoxia. We are seeing a lot of cases coming with happy hypoxia. Suddenly patient अच्छे से चल रहा है, अच्छे से सब कुछ अच्छा है, generally very better, asymptomatic, लेकिन ऑक्सीमीटर दिखा रहा है 85। ये सिचुएशन है जहां सडनली इससे कम हुआ, 70 तक गया तो पेशेंट कैन कोलैप्स एंड फिनिश, फिर अपने हाथ में कुछ भी नहीं है। So oximeter is very important in this situation. Always keep one oximeter and a thermometer in your place and keep checking regularly. Not that डर के नहीं, लेकिन एक alertness के लिए, खुद जानकारी के साथ में एक alert रहने के लिए ये दो चीजें अपने घर में रखें। Alright? So the moment you feel some kind of uneasiness या some kind of say सर्दी जैसा लग रहा है, नाक बहना शुरू हुआ है, तो ऑक्सीमीटर एक बार यूज कर लें और इस तरह की डॉग ब्रीदिंग के साथ में आप ये ऑक्सीजन लेवल अपना बढ़ा सकते हैं। ओके, सो एक बार ट्राई कर लें हम सब मिलके, वन राउंड, लेट्स डू। सो हाथों को नीज पर लगा दें और बैक को स्ट्रेट रखे हुए लो बैक से थोड़ा सा आगे झुके, जीभ को बाहर निकालें, डू नॉट पुट एनी स्ट्रेन ऑन योर जॉ एंड ब्रीथ। थोड़ी सी फास्ट ब्रीथिंग। ऑल राइट, वेरी गुड। जिनके वीडियोस ऑन है बहुत अच्छा सब कर रहे हैं। एंड यू कैन रिलैक्स, आंखें बंद रखें फॉर अ फ्यू सेकेंड्स। Let the effects be felt by your entire body. Let your brain register what you have just done. एक सहज कुंभक लगेगा। जब ब्रीदिंग फिर से रिज्यूम हो, नॉर्मल हो, तब धीरे से आंखें खोलें। ऑल राइट, सो फार सो गुड, सब कंफर्टेबल हैं अब तक? ऑल राइट, now next breathing once again with the tongue we are going to do. This is Simha Kriya. Once again, excellent to increase your oxygen level. Okay, now Simha Kriya, आपने सबने शायद वो एक वीडियो भी था सदगुरु जी का, ईशा फाउंडेशन के सदगुरु जी, जिनमें उन्होंने ये सिंहासन के की जो ब्रीदिंग है वो उन्होंने दिखाई थी, एक डेमोन्स्ट्रेशन था। इट इज अ वेरी एक्सीलेंट ब्रीदिंग प्रैक्टिस। पूरा नेजोफेरिंजियल एरिया आपका क्लीन करने में, चेस्ट को क्लीन करने में,
बेली को क्लीन करने में, एनस तक का एरिया, आपका मूल एरिया जो है वहां तक का एरिया पूरा क्लीन करने में, हेड रीजन को क्लीन करने में, आप ये ब्रीदिंग के साथ में फील कर पाएंगे कि आपका पूरा सिस्टम आपका एक्टिवेट हो रहा है, वाइब्रेशन आपको पूरे शरीर में फील हो रहे हैं, और एनर्जी, एक काइंड ऑफ एनर्जी आपको फील होगी। जैसे लायन की एनर्जी होती है, आप देखेंगे लायन इज ऑलवेज फ्रेश एनर्जेटिक। लायन को आप ज्यादातर आलसी नहीं देखेंगे, और लायन अकेला भी घूमता है, लायन राजा की तरह होता है, राजा ही होता है इनफैक्ट। तो वो लायन का जो एटीट्यूड है वो हम अपने अंदर ला सकते हैं विद दिस लायन ब्रेथ। सो whenever you are feeling alone, lonely, with this kind of simha breathing, you can even remove that kind of feeling from your mind. Okay, so और एक बहुत courageous feeling आती है, fears सारे निकल जाते हैं, तो पूरा सिस्टम हमारा एक्टिवेट और एनर्जाइज हो जाता है। सो आई एम जस्ट शोइंग यू वन राउंड। हाथों को वंस अगेन नीज पर रखें और हाथों को ब्रॉड रखें लाइक दिस। यू कैन सी मी, माय हैंड्स आर ब्रॉड, माय चेस्ट इज ओपन, एंड व्हेन आई ब्रीथ नाउ आई इनहेल थ्रू माय नॉस्ट्रिल। और देख ले मुझे, साथ में अभी ना करें, बाद में करें। दिस इज हाउ आई एम ब्रीदिंग। टंग को मैंने पुश आउट किया है एक फोर्स के साथ में, लोअर जॉ पे प्रेशर बनाते हुए मैंने टंग को रिलीज किया है। एट द सेम टाइम माय आईज आर गोइंग बिग एंड आई एम लुकिंग एट द सेंटर ऑफ माय फोरहेड। मेरी आंखों को मैंने रोल कर दिया सेंटर ऑफ माय फोरहेड तक। ओके, सो ये है लायंस ब्रेथ। इसको आप स्लोली भी कर सकते हैं, एक ब्रेथ लें, रेस्ट करें, फिर से एक राउंड करें, रेस्ट करें, ऐसे भी कर सकते हैं, और आप इसे कंटिन्यूअसली भी कर सकते हैं लाइक दिस। सो इस तरह से आप कंटिन्यूअसली भी कर सकते हैं। सो देयर आर टू वेज ऑफ डूइंग लायंस ब्रेथ लाइक दिस। आप इसे वज्रासन में बैठ के भी कर सकते हैं, और अगर दैट इज डिफिकल्ट, नीज में कई लोगों को प्रॉब्लम होता है, बैक में प्रॉब्लम होता है, नीचे नहीं बैठ सकते, तो आप चेयर पर भी बैठ के, जैसे मैंने अभी दिखाया इस तरह से चेयर पर भी बैठकर आप ये कर सकते हैं। सो वील डू 2 राउंड्स लाइक दिस, 2 ब्रेथ्स। आई जस्ट वांट टू सी एवरीबॉडी डूइंग इट। आई नो वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, 3-4 प्रैक्टिसेस और हैं, और फिर थोड़ा डाइट के बारे में बात करेंगे। ओके, सो वी जस्ट डू 2 राउंड्स। इनहेल करें and protrude your tongue out with nice force. Exhale के साथ में टंग को बाहर निकालें, शर्माएं नहीं, करें करें सब करें। I know it looks a little funny and awkward, लेकिन बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। Yes, many of you are doing very nice, very nice, very nice. If you are doing continuous breathing, just do around 8 to 10, or according to your capacity. If you are doing single breath, you can do up to 10, and you can do 2 sets of 10 like this. very excellent practice. ओके, इसके बाद रिलैक्स करें, आंखें बंद रखें, और अपने हाथों से गले पर हल्का सा मसाज करें टू सूद आउट द साइड इफेक्ट्स। इन केस थ्रोट में खराश महसूस हुई हो, डिस्कम्फर्ट महसूस हुआ हो, तो हाथों से हल्का सा मसाज कर दे नेक पर, जिससे वो सब सूद आउट हो जाए। ऑलराइट, नाउ वी गो टू द नेक्स्ट ब्रीदिंग। अब हमने सारी एक्टिव ब्रीदिंग कर ली है, अब थोड़ी रिलैक्सिंग कूलिंग डाउन ब्रीदिंग करेंगे। कूलिंग डाउन प्रैक्टिसेस। नाउ इट्स फॉर द माइंड। जो फियर बना हुआ है, जो इमोशन हमारा बना हुआ है, लॉकडाउन होगा कि नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा, खर्चा पानी कैसे निकलेगा, हम बाहर निकलेंगे हमें कोरोना हो गया तो, ये सारे जो हमारे इमोशंस आते हैं माइंड को डिस्टर्ब कर जाते हैं। ऑब्वियसली द सिचुएशन इज लाइक दैट। रातों को नींद नहीं आती है। पहला भी लॉकडाउन हमने इसी तरह से अनुभव किया था, दूसरी बार ये सेकेंड वेव और ज्यादा स्ट्रॉन्ग आई है और नुकसान कर रही है। सो ऐसी सिचुएशन में अपना माइंड काम और बैलेंस कैसे रखें? सो वी हैव many practices to keep your mind balanced and calm, like we have anulom vilom pranayam, we have chandra bhedan pranayam। अनुलोम विलोम तो ज्यादातर सबको पता होगा, लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट की हम ब्रीदिंग करते हैं ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल से। चंद्र भेदन प्राणायाम है जो माइंड को कूल करने का काम करती है। यू इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट साइड एंड यू एक्सहेल फ्रॉम द राइट साइड। इफ यू आर नोटिंग
प्लीज डू नोट डाउन। चंद्रभेदन प्राणायाम इज टू कूल डाउन योर माइंड। अगर रात को नींद अच्छी नहीं आ रही है तो अराउंड 7, 7:30, 8 o'clock के आसपास 2 से 3 राउंड आप 10-10 ब्रेथ के चंद्रभेदन प्राणायाम कर लें। रात को बहुत अच्छी पीसफुल नींद आएगी। मे बी नॉट फ्रॉम द फर्स्ट डे, लेकिन रोज अगर ये प्रैक्टिस करेंगे तो 2-3 दिन में आपका माइंड सेट हो जाएगा, इतना कूल हो जाएगा कि आप आराम से सो पाएंगे। दिन में सुबह में उठ के भी करें, रात को सोने से पहले करें, इस तरह से 2 घंटे पहले कर लें। डेफिनेटली इट विल गिव यू अ वेरी पीसफुल एंड रिलैक्स्ड माइंड। बाहर दुनिया में जो होता है होने दें, लेकिन अपना पीस बनाए रखें, अपनी सेहत बनाए रखें, क्योंकि जिसका मन स्वस्थ उसका शरीर स्वस्थ, जिसका शरीर स्वस्थ उसका सब कुछ स्वस्थ। सो Chandrabhedan pranayam is inhaling from the left side and exhaling from the right side. We will do one round, all of us together. We will do around 5 breaths of Chandrabhedan pranayam. So spine को सीधा रखें। अब फिर से आपकी जो विष्णु मुद्रा है या प्रणव मुद्रा है, इसको लगाएंगे हाथ में। पहली 2 उंगलियों को फोल्ड कर देंगे, थंब एक तरफ बाहर निकालेंगे जिससे राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, और लास्ट 2 फिंगर्स ओपन रखेंगे जिससे लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे। ऑलराइट, सो एवरीबॉडी गेट्स दिस? विष्णु मुद्रा, और ऑल्सो कॉल्ड प्रणव मुद्रा और नासिका मुद्रा या सिंपल अनुलोम विलोम मुद्रा। तो इससे हम 5 राउंड करेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करें, अच्छा गहरा इनहेल करें, फास्ट फास्ट इनहेल ना करें, एंड राइट साइड से एक्सहेल करें। धीरे धीरे पूरी सांस छूटने तक आराम से सांस को छोड़ें। फिर से लेफ्ट साइड से इनहेल करें, इनहेल फ्रॉम योर लेफ्ट, एक्सहेल फ्रॉम योर राइट, inhale from your left, exhale from your right, inhale from your left, exhale from your right, and relax. Few seconds, keep your eyes closed. और अनुभव करें कैसे ब्रीदिंग अपने आप स्लो हो जाती है, माइंड रिलैक्स हो जाता है। Obviously, अभी हमने ज़्यादा राउंड्स नहीं किए, तो probably you may not feel all these effects right now, but when you practice yourself at your home, that time you will notice these changes coming up. Also, one more situation, अगर हाइपर एसिडिटी किसी को है या लूज मोशंस है, डाइजेशन की प्रॉब्लम है, बहुत फास्ट डाइजेशन हो रहा है, मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट है, हाइपर थायराइडिज्म है, तो ऐसी सिचुएशंस में जिनका वेट बहुत जल्दी जल्दी लूज हो रहा है और रीजन पता नहीं है क्यों वजन कम हो रहा है, डायबिटीज है जिसमें वजन कम हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशंस में चंद्रभेदन प्राणायाम वर्क्स वंडरफुल, बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है रेगुलर प्रैक्टिस अगर आप करें तो। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रेगुलर प्रैक्टिस करें, 10 राउंड करें। इट हार्डली टेक्स 2 to 3 मिनट्स। माइंड आपका डिस्टर्ब हो, कोई उद्वेग हो मन में, रेस्टलेस हो, एंग्जाइटी हो, चंद्रभेदन प्राणायाम करें। बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं, टेंशन है मम्मा पेपर कैसा होगा, अभी तो खैर वी ऑल नो 10th का तो बोर्ड एग्जाम भी कैंसिल हो गया सीबीएसई का। सो बट जो जब सिचुएशन एग्जाम्स वाली है, आपकी कोई मीटिंग है, इंपॉर्टेंट मीटिंग है जहाँ पे आपको कोई प्रेजेंटेशन देना देना है, तो पेट में जो बटरफ्लाईज होते हैं, नर्वसनेस होती है, ऐसे टाइम पे अगर आप चंद्रभेदन प्राणायाम करें, सिंपल माइंड कूल डाउन हो जाएगा और आप बहुत आसानी से इसमें से बाहर निकल आएंगे। सो दिस इज वन चंद्रभेदन प्राणायाम। नेक्स्ट वी आर डूइंग शीतकरी प्राणायाम। शीतकरी प्राणायाम is again a very cooling pranayam, not just बॉडी की हीट को शांत करता है बट मन को भी शांत करता है। शीतकरी प्राणायाम कैसे करना है? टीथ टू टीथ आपको लगा देना है ऐसे, दांत के ऊपर दांत, और दांतों के बीच में गैप्स होते हैं, तो यहाँ से आपको हवा को सक इन करना है, खींचना है हवा को अंदर। फिर मुंह को बंद कर दे और नासिका द्वारा सांस को छोड़े।
आप नेचुरली एक ब्रेथ भी लेंगे तो आप बहुत कूल फील करेंगे अंदर, और ना सिर्फ मुंह में, आपके चेस्ट तक जितना डीप आप ब्रीथ करेंगे पूरा सिस्टम आपका कूल हो जाएगा। वंस अगेन 10 से 12 राउंड और 2 सेट्स। इट हार्डली टेक्स 2 to 3 मिनट्स। तो आप ये सारी सीक्वेंस अगर आप फॉलो करते हैं, पहले हीटिंग वाले प्राणायाम, एक्टिव प्राणायाम करें, उसके पहले आप सूक्ष्म व्यायाम करें, उसके पहले भी आप नाड़ी शुद्धि करें, उसके पहले भी आप स्टीम लें। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू द बैक थिंग बिकॉज वी आर राइट नाउ एट द कूलिंग प्राणायाम। तो जैसे हमने शुरू किया इस तरह से स्टीम लेकर, फिर आप नाड़ी शुद्धि करें, फिर सूक्ष्म व्यायाम करें, फिर सारे हीटिंग प्राणायाम आप इतने सारे मैंने बताए, उसमें से आप कोई 7-8 भी करते हैं और 2-3 कूलिंग प्राणायाम करते हैं, यू आर डन फॉर द डे। Hardly takes 30 to 45 minutes if you are doing at your capacity, at your speed, at your convenience. सिर्फ इतना पेट को खाली रखना है आपको, पेट भरे, हेवी पेट पे ना करें कोई भी चीज। ऑलराइट, नाउ वन मोर प्राणायाम, ये हमने शीतकरी किया। अब दूसरा है काकी प्राणायाम, काकी ब्रीदिंग। तो हमारे जो ऋषि मुनि थे, सारे नेचर को देख के सारी अलग अलग ब्रीदिंग टेक्निक्स ले रहे थे। एनिमल्स को उन्होंने देखा, बर्ड्स को देखा। तो ये काकी ब्रीदिंग क्या है? अब काकी ब्रीदिंग इज कौवे की ब्रीदिंग। काकी मीन्स अ क्रो इन संस्कृत एंड प्राणायाम इज एक्सटेंडेड ब्रीदिंग। सो काकी प्राणायाम में हम मुंह को कौवे की चोंच की तरह बनाते हैं, लाइक दिस, पाउट। आज के जमाने में जो बच्चे पाउट करके फोटोज लेते हैं, पाउट। ओके, सो इस तरह से वी आर गोइंग टू सक इन एयर। अब ऐसा समझे कि जब ये पाउट कर रहे हैं आप, बीच चोंच जैसी लिप्स बना रहे हैं, तो ऐसा समझे कि बीच में आपने स्ट्रॉ पकड़ी है और ये स्ट्रॉ के थ्रू आप सक कर रहे हैं, हवा को अंदर खींच रहे हैं। ओके, और फिर मुंह को बंद करके नासिका द्वारा सांस को छोड़ें। ऑलराइट, सो यू वांट टू ट्राई वन राउंड? आई नो टाइम बहुत टिक टिक कर रहा है, एक राउंड हम ट्राई करते हैं बिकॉज आई सी सम थम्स अप्स आल्सो। ओके, सो आंखें बंद करें और रिलैक्स मोड में अच्छी गहरी सांस भरें टू योर कैपेसिटी। फील द कूलिंग इफेक्ट इनसाइड एंड माउथ को क्लोज करके नासिका द्वारा सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ें, एफर्टलेसली बाहर छोड़ें। एंड जस्ट कीप योर आईज क्लोज्ड फॉर अ सेकंड एंड स्लोली। ओके, सो दिस वाज काकी ब्रीदिंग। सो हमने शीतकरी ब्रीदिंग करी, उसके पहले चंद्रभेदन ब्रीदिंग करी, उसके बाद हमने ये काकी प्राणायाम किया। नाउ वी आर डूइंग सिंपल इक्वल ब्रीदिंग। सो हम जो नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारा इनहेल ज्यादा होता है, एक्सेल बहुत कम होता है, और इसी वजह से हमारे अंदर टॉक्सिन्स क्रिएट होते हैं, बिकॉज your exhale, you are not throwing out what is not required by the body. So because of that, the toxins are getting accumulated inside the body. At the same time, mind, emotions रह जाते हैं, डंप हो जाते हैं अंदर, बॉडी के अंदर, माइंड के अंदर, हार्ट के अंदर। जो अनाहत चक्र है भरा रहता है, इमोशंस भरे रहते हैं अंदर, जिसकी वजह से हैवीनेस फील होता है। नॉट ओनली हैवीनेस, sometimes you may feel breathless also because you are just choked. Why? Because your emotions are choked. So ऐसे टाइम पे जब हम इक्वल ब्रीदिंग करते हैं, वी आर गोइंग टू डू इक्वल ब्रीदिंग, लेकिन ऑल्सो इफ यू डू एक्सेलेशन मोर, जैसे 6 काउंट की आपने इनहेल करे और 8 काउंट की आपने एक्सेल करी, आंखें बंद करें और मन में काउंटिंग करें, स्लो काउंटिंग करें, 6 काउंट की इनहेल, 8 काउंट की एक्सेल, आप देखेंगे आप इमीडिएटली फ्री फील करना शुरू करेंगे, emotionally also and in your body also. You will start feeling much more energetic and much more freer. So right now we are doing just 2 rounds of equal breathing. आप जब घर पे करें 3 से 5 मिनट तक इक्वल ब्रीदिंग करें, आंखें बंद रखें, रिलैक्स रहें एंड just focus on your breath. Inhale, I'm doing 6 counts of inhale and exhale. Inhale, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exhale, 1, 2,
3, 4, 5, 6. Inhale, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exhale, 1, 2, 3, 4, 5, 6. And just for 2 seconds, keep your eyes closed and slowly open. Okay. मे बी शुरुआत में आपको 6 काउंट करना डिफिकल्ट लगे. 6 काउंट का एक्सेल वी आर नॉट यूज्ड टू डूइंग सच अ डीप एक्सेल. सो यू कैन स्टार्ट विद 3 काउंट्स और यू कैन स्टार्ट विद 4 काउंट्स टू योर कैपेसिटी. आप शुरू करें और जितना इनहेल करते हैं उतना एक्सेल करें एंड फिर कोशिश करें जैसे आपकी वो रिदम अच्छी बन जाए फिर कोशिश करें कि एक्सेलेशन को और आप लंबा कर पाएं. तो 6 काउंट का इनहेल और 8 काउंट का एक्सेल अगर आप कर पाते हैं तो इट इज एक्सीलेंट. इट इज गोइंग टू हेल्प यू feel more free. You will start feeling more energy in your body. एक एक्टिवेशन हो जाएगा बॉडी में, एक अच्छी सी वाइब आ जाएगी अपने बॉडी में और सारी चीजें, हेल्थ भी अच्छी बनेगी, रिलेशंस भी अच्छे बनेंगे बिकॉज अभी कोई डम्प्ड इमोशन नहीं है अंदर. जो भी था वो थ्रू योर ब्रेथ यू हैव थ्रोन आउट. तो आपके रिलेशंस भी अच्छे बनते हैं, हर चीज आपकी अच्छी बनती है. लिस्ट इज एंडलेस. अच्छी अच्छी चीजों की गिनती करना, लिस्ट इज एंडलेस. सो दिस इज इक्वल ब्रीदिंग. इसके बाद 1 राउंड वी विल डू ऑफ भ्रामरी प्राणायाम. भ्रामरी प्राणायाम के साथ में हम कानों पर टैपिंग करेंगे. आई विल नॉट टैप माई ईयर्स बिकॉज आई हैव माई ईयरफोन्स. बट जैसे हमने स्टार्टिंग में डायफ्राम पर टैपिंग करी थी विद एक्सलेशन, उसी तरह से हमें एक्सलेशन में टैपिंग करनी है कानों के ऊपर. ओके. सो जब ये टैपिंग हम करेंगे तब आपको साथ में मौकार में जैसे हमिंग ऑफ अ बी होता है, इस तरह से आपको एक्सेल करते हुए सांस छोड़नी है. सॉरी, एक्सेल करते हुए हमिंग करनी है और साथ में आपको कानों पर टैपिंग करनी है. जब इस तरह से आप करेंगे आप महसूस कर पाएंगे फ्रॉम टॉप ऑफ योर हेड टू द बॉटम ऑफ योर फीट आप पूरे शरीर में एक ब्यूटीफुल सी ब्लिसफुल वाइब्रेशन को फील कर पाएंगे. ऑलराइट. सो लेट्स टेक अप 1 राउंड. भ्रामरी प्राणायाम. आंखें बंद करें, स्पाइन को सीधा रखें, इनहेल करें थ्रू योर नॉस्ट्रिल्स एंड एक्सेल करते हुए टैप 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 हल्की हल्की टैपिंग कानों पर महसूस करें और मकार की साउंड में एक्सेल करें. You can try out 1 more round. इनहेल करें, स्पाइन को सीधा रखें और एक्सेल करते हुए मकार एंड जेंटल टैपिंग ऑन योर ईयर्स. Beautiful vibration throughout your body and all opening up all your energy channels. And few seconds, you can keep your eyes closed right now because of shortage of time. I'm rushing up. Okay. और इसके बाद जब आप ओमकार करेंगे तो आप इतना ब्लिसफुल फील करेंगे. इसी वाइब्रेशन को फील करते हुए आंखें बंद रखें और 5 से 11 बार आप ओमकार की चैंटिंग करें या आप महामृत्युंजय जाप करें या आप गायत्री मंत्र करें या आप सिंपल शांति मंत्र करें. जो भी मंत्र, या अगर आप जैन हैं नवकार मंत्र या व्हाटएवर योर फेथ इज इन व्हाटएवर मंत्र, यू कैन जस्ट चैंट दैट मंत्र 5 to 11 टाइम्स एंड बहुत ही फ्रेश, कूल, पीसफुल आप फील करेंगे. ऑलराइट. सो विद दिस वी एंड द प्राणायाम सेशन. Anybody, any questions? या फिर I will open up the group also in case we are running short of time. अगर सबको जाना है तो you can post your questions, your queries on the group also. मैं open कर दूंगी chat के लिए. So you can post your questions over there also. Anybody wants to ask anything? Okay, you can unmute yourself now. Now, I think Bhai, can everybody unmute? Yeah. Yes. Okay. Yeah. Okay. Now, अच्छा, आपको कोई क्वेश्चन हो तो म्यूट अनम्यूट करें. अगर क्वेश्चन नहीं है तो आप म्यूट रखें.
बिकॉज नहीं तो फिर बहुत बैकग्राउंड आवाजें बहुत आती हैं। भ्रामरी में कैसे टैपिंग करते थे? भ्रामरी में कैसे हाँ टैपिंग जी, करते? अमी हाँ जी, मीना आंटी कुछ बोल रहे हैं। मीना मीना जी, अच्छा, तो आपके वहां से बहुत बैकग्राउंड आवाज आ रही है। Brahmi, can I ask you a question? यस, I have a question कि कोविड, जिनको कोविड से हॉस्पिटलाइजेशन होके घर आते हैं, रिकवर होके, we have seen that lot of medicines are given even after coming home. तो उनको constipation का, bowel movement का काफी प्रॉब्लम होता है. Can you say कि मुद्रा, any प्राणायाम और especially the mudra to overcome the constipation in post-COVID patients? yes. So what we did in the starting was linga mudra, शिवलिंग मुद्रा. Remember, like we did this. हमको ऊपर रख के ये शिवलिंग मुद्रा भी बहुत बढ़िया काम करेगी, उनके पेट को साफ करने में, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करेगी. It will improve the digestive fire. This is one mudra that can be done. Other mudra is pran mudra, which also we did just now. Yes. Yeah. Right? Yeah. One more mudra is Abhay Hriday mudra. I don't want to introduce it right now. Probably I can show you because थोड़ी सी complicated मुद्रा है. Okay. क्या करेंगे, दोनों बैक हैंड टू हैंड हम होल्ड करेंगे और सारी फिंगर्स को पीछे से हम इंटरलॉक करेंगे ऐसे, और पहली उंगली और अंगूठा इसको हम इस तरह से पकड़ के रखेंगे. राइट, यू कैन सी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, but this is the mudra. This is called Abhay Hriday mudra. Okay. Even this helps to release all the stuck up stuff inside. वो किसके लिए So है? constipation, ये there are many reasons for this. This improves your lung function, this improves your heart function, it removes fears from you, and जो भी stuck up है अंदर, not only emotions but also the toxins that are physically, the toxins that are inside. bowel movement stuck up जब हो जाती है तो उसको भी रिलीज करने के लिए, बॉडी से हर चीज को रिलीज करने के लिए, जो भी पकड़ के रखा है उसे रिलीज करने के लिए, दिस इज अभय हृदय मुद्रा. And how We many have used this mudra a lot. how many times are for duration? 3 to 5 minutes. This can be held for say up to 10 to 12 minutes or till your fingers pain. Okay. ऐसे Okay. पकड़ने से उंगलियां दुखेंगी, तो शुरुआत में 1 मिनट भी आप मुश्किल से पकड़ पाएंगे. Okay. रोज प्रैक्टिस करेंगे तो आप धीरे धीरे 3, 4, 5 मिनट तक पकड़ पाएंगे. 10 मिनट तक इसको पकड़ा, एक्सीलेंट, आप पूरे फ्री हो जाएंगे. Okay. Great. Right? Thank you so much. So we have used this mudra a lot during the lockdown because lockdown के टाइम पे सब ऐसे फ्रीज हो गए थे, सब फिजिकली भी बाहर नहीं जा पा रहे थे, मेंटली भी सब बहुत डिस्टर्ब हो गए थे. तो वो जो फ्रीज स्टेट थी सबकी, उस समय पे हमने अभय हृदय मुद्रा बहुत यूज की और लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत हल्का फील किया और बहुत फायदेमंद रही ये मुद्रा. थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है बट it is a very very beneficial mudra. Okay. Okay. You all show me, I will be able to say whether you are doing it correct or no. Back to back, once again I am showing back to back 2 hands, then start interlocking the last finger, the third finger, the middle finger, and आपकी index finger और thumb छूट जाएंगे, वो आप नहीं कर पाएंगे अच्छे से, तो उनको दोनों को join कर दें ऐसे same side पर. All right. This is Abhay Hriday Mudra. It even strengthens your respiratory and your heart function. Okay. So people who are recovering, खास करके COVID infection के बाद, post COVID के जो side effect, post COVID के जो side effects हैं, उसमें से recovery, faster recovery के लिए, this is a very good mudra. Okay. Thank you so much. Thank you. Yeah. Yeah. Okay. Can we move on? हाँ जी. Hello. Yeah. Who is this talking? Ami ma'am. Okay, Shilpa. I just want to ask कि कि ऑक्सीमीटर के साथ आपने और कौन सा डिवाइस बोला था? थर्मोमीटर. Yes. Digital वाला thermometer Okay. रखें, infrared वाला रखें, whatever is. Okay. Thank you. Okay. Yeah. Okay. Now, if there are no other questions, I move forward. थोड़ा सा dietary guideline. 10 minutes. तो हमारे सुपर हीरोज हैं इस समय के विटामिन सी, विटामिन डी और जिंक. 3 सुपर हीरोज.
सबने देखा होगा प्रिस्क्रिप्शन जब आता है डॉक्टर से, कोविड अगर हुआ है, प्रिस्क्रिप्शन में विटामिन सी, विटामिन डी एंड विकोजिन, राइट? सबने देखा होगा ये. सो these three very very important heroes of our time right now जो हमें फाइट करने में हेल्प कर रहे हैं. अच्छा खाना खाएं. विटामिन डी वेजिटेरियन फूड्स में नहीं मिलता, हार्डली मिलता है. जो फोर्टिफाइड फूड्स हैं उसी में से मिलता है. मिल्क अगर फोर्टिफाइड है, ग्रेन्स अगर आपके फोर्टिफाइड हैं, तो ही आपको विटामिन डी मिलेगा. नॉन वेजिटेरियन फूड्स में ज्यादा करके मिलेगा आपको मीट में या फिश में, कोई ऑयली फिशेस हैं तो उसमें आपको विटामिन डी मिलेगा. या फिर आप अंडे खा रहे हैं तो एग योक में जो येलो वाला है अंडा, उसमें से आपको विटामिन डी मिलेगा. तो अब हमें क्या करना है? फॉर विटामिन डी वी हैव टू गो आउट इन द सन. अब बाहर तो जा नहीं सकते, क्या करें? घर में अगर आपके धूप आती है तो जस्ट फॉर 3 to 5 मिनट्स, मैक्स टू मैक्स 5 मिनट्स, जब तक अच्छी सी आपको ये स्किन आपकी रेड नहीं हो जाती, कड़क धूप में आपको खड़ा रहना है. जब तक ये स्किन आपकी रेड नहीं हो जाती, वो चुभे नहीं, वो धूप आपको चुभे नहीं, तब तक की वो धूप लेनी है विदाउट अप्लाइंग एनीथिंग ऑन योर स्किन. ओके, देयर शुड बी नो ऑयल एप्लीकेशन, नो लोशन अप्लाइड, और स्किन को ओपन रखना है. तो कपड़े पहने रहेंगे तो भी वो लाइट परमिएट नहीं होती है, सनलाइट. So you have to keep your part maximum open and you have to do a sun bath. Okay, this is for vitamin D. अच्छा, मुंबई में ये भी difficult है, so then you have to take medicines that are prescribed by the doctor. Once in a week के जो sachets आते हैं, take them either in water or you can take them in milk. So this is about vitamin D. Very important in building up your immunity, in building up your collagen, fighting off infection. Very very important. बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने में. बोन्स जब स्ट्रॉन्ग होंगे, बोन मैरो के अंदर से जो आपकी इम्यूनिटी बिल्ड होती है, तो उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं बोन मैरो में, तो उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खून को और लाल करने के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन डी. देन वी टॉक अबाउट विटामिन सी. वंस अगेन एवरीबॉडी नोज ये मंत्रा. Excuse me, ma'am. एन एप्पल. यस यस मैम, विटामिन डी आई एम नॉट श्योर, क्या वो कांच के थ्रू आता है? खिड़की के नहीं, कांच के थ्रू नहीं आएगा. नहीं, you have to keep your window open. Right. And Okay. you have to have a direct exposure to the sun rays. And Okay. 5 minutes is just enough. Just 5 minutes. And कड़क वाली धूप, जो दोपहर की 11 से 3 वाली जो धूप होती है, not the soft. हाँ, वो लेनी है, not the soft वाली जो हम सुबह 7 बजे 8 बजे, आजकल तो 7 बजे भी सनराइज हो जाता है, तो 8 बजे हम थोड़ा सा सनबाथ कर लेते हैं, वो नहीं चलेगा. उसमें नहीं बनेगा आपका विटामिन डी. आपको कड़क धूप में 5 मिनट को सनबाथ लेना है with maximum exposure to your of your skin. Okay, next we talk about vitamin C. तो just जो पहले का हमारा मंत्र था, an apple a day keeps the doctor away, वो मंत्र अभी हमने चेंज कर दिया है, a lemon a day keeps your doctor away. So एक नींबू बहुत जरूरी है दिन का, बॉडी को अल्कलाइन रखता है. एसिड पीएच बीमारियों का घर है. बॉडी के अंदर अगर एसिडिटी है, बीमारियों का घर है. आपका पीएच एसिडिक है. एसिडिक कौन से फूड से बनता है आपका पीएच? सारे जंक फूड, सारे चिप्स, सारे बिस्किट, सारे वेफर्स, सारे चाट वाली आइटम्स, हाई ऑन सॉल्ट, हाई ऑन शुगर, प्रिजर्वेटिव वाली चीजें, कलर वाली चीजें, आपके कोल्ड ड्रिंक्स, ये सारे एसिड प्रकृति हैं. सारा ब्रेड, pizzas, burgers. Okay, somebody, there is a lot of background sound. Could you please mute yourself? Excuse me. Please. हाँ जी. कभी कभी कठोल वगैरह खाने से लाइक चना वगैरह खाना. हाँ. So you are muted, Reena. You are muted. Reena, please unmute and talk. Sorry, हाँ. Sorry. अमी चना वगैरह खाने से भी एसिडिटी हो जाती है. छोले खाया तो we should avoid those food ना. या तो आपको अपनी प्रकृति को जानना है और जिस चीज से आपको तकलीफ हो रही है उसे नहीं लेना है. या फिर आप ये टाइमिंग्स नोटिस करें. कई बार ये जो हेवी प्रोटीन्स होते हैं, जो कठोल के हेवी, मूंग और मट से ज्यादा तकलीफ नहीं होती, लेकिन जो चने हैं, राजमा है,
वाल हैं, ऐसे जो हैवी कठोल होते हैं, उनसे कई बार तकलीफ होती है, कई लोगों को गैसेस होते हैं, एसिडिटी होती है, तो अगर वो रात के टाइम पे खाएं तो वो डाइजेशन में डिफिकल्ट होते हैं. तो if you want to take in small quantity in the morning timing, either for your breakfast or on your lunch, which will give you, like, you know, good protein content also. At the same time, after eating that, don't sleep immediately. So what you do after eating that, you have to sit in Vajrasan for say 10 to 12 minutes, or you do a little slow walking after that, and you help the easy digestion process, so that, you know, वो अच्छे से digest हो जाए. और रात के time पे specifically heavy proteins ना खाएं. I know gyms and all will always suggest you eat proteins in the evening, only protein rich diet, only protein, Madam, only 1 protein, minute. carbohydrate मना करते हैं. Madam, Okay, yes, 1 minute. yes, The thing is, I am under isolation and tested positive. okay, And my children, okay. they're all a family of doctors. So, but they have told me not to take lime at the moment because it may create sore throat or something. Okay, so which is your day right now? I've already crossed 11 days now. Oh, then there is no problem. Then नहीं you can have. क्या होता है, थोड़ा डर लगता है because I don't want any constriction of throat and any soreness and all that. नहीं, अभी around. थोड़ा सा डर See, if it लगता is suiting you, you can have. If it is not suiting you, then you do not have. है. अच्छा ठीक है. The logic is But I very am having simple. vitamin C मैं ले रही हूँ. फिर तो जो ठीक है ना. लिम्सी है ना, लिम्सी, they have हाँ given जी, me all that. हाँ जी. That Yeah, I'm so taking. so then you have got your daily dose of vitamin C. Okay, ठीक There है, is ठीक no है. problem. Thank you. Thank you, madam. Thank you. Okay, okay. So vitamin C, now we know, बहुत सारे, नींबू is very alkaline, and जितना अल्कलाइन चीजें आप लेंगे उतना आपके बॉडी अच्छी हेल्दी बनेगी, और आप डिजीजेस को फाइट करना आपके लिए आसान हो जाएगा. जितना आप अल्कलाइन रहेंगे उतनी आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी. All right, so all alkaline things come from all the sattvic things. जैसे जो नहीं बोला वो नहीं लेंगे, तो नेचुरली जो अच्छी चीजें हैं वही आप लेंगे, जिसमें आपके फल आ गए, आपके वेजिटेबल्स आ गए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आ गए, तो ये सारे अल्कलाइन प्रकृति के हैं. फ्रूट्स ऑफ डिफरेंट वेराइटी यू कैन हैव, like citrus fruits you can have your watermelons, your muskmelons. आप देखें आपको क्या सूट करता है. 3 से 4 फ्रूट्स आप दिन में लें, 2 फ्रूट्स आप डिफरेंट दिन में लें. आप वेजिटेबल्स के 3 से 4 पोर्शंस लें दिन में, like in the form of raw, in the form of salads or cooked सब्जियां. तो ये सारी चीजें जब आप लेंगे, और अच्छे होल ग्रेन्स लें, अच्छा बैलेंस्ड फूड लें. Okay, talking about oil and ghee. Now once again, बिल्कुल जो बोलते हैं मत लो, तो ऐसा नहीं है. बॉडी को थोड़ा ऑयल एंड घी इज आल्सो रिक्वायर्ड for a good balance, for a good absorption of vitamins which are fat soluble. Vitamin A, vitamin D, vitamin E and vitamin K. ये 4 vitamins जो आपके ब्लड को अच्छा रखते हैं, जो आपकी इम्यूनिटी अच्छी बनाते हैं, ये 4 विटामिन्स हैं जिनको फैट लगता है बॉडी में स्टोर होने के लिए. अगर फैट नहीं हुआ इन स्मॉल अमाउंट, इन द रिक्वायर्ड अमाउंट, अगर उतना फैट नहीं हुआ, तो ये 4 विटामिन की आप डेफिशिएंसी अनुभव करेंगे. सो यू हैव टू हैव एटलीस्ट 60 ml ऑफ ऑयल एंड 15 ml ऑफ घी इन अ डे. एक दिन की ये रिक्वायरमेंट है. लेकिन घी अच्छा है करके आप 3-4 चम्मच, 5 चम्मच, 6 चम्मच जब आप लेते हैं, लड्डू भी खा लिया, रोटी पर भी अच्छे से 1 बड़ा चम्मच घी लगा दिया, तो सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं. फिर आप डाइटिशियन के पास जाएंगे, डाइटिशियन बोलेंगे घी बंद, तेल बंद. तो आपको अपनी लिमिट जाननी है. अराउंड 60 ml इज 4 बड़े चम्मच ऑफ ऑयल. ऑयल आप कोई भी यूज करें, सारे तेल अच्छे हैं, लेकिन जब आप ओवरबोर्ड जाते हैं तब फिर डॉक्टर्स आपको बोलते हैं तेल बंद करो, मूंगफली का तेल मत खाओ, सिर्फ ऑलिव ऑयल खाओ. ये सारी बातें तब आती हैं जब आप ओवरबोर्ड जाते हैं. सो 4 tablespoons ऑफ ऑयल, एनी ऑयल, और आप मूविंग रखें. एक बार ये तेल लिया, फिर दूसरी बार दूसरा तेल लिया, या 3-4 वेराइटीज ऑफ ऑयल रखे, सनफ्लावर ऑयल रखे, कॉर्न ऑयल रखे, घानी रखे, राइस ब्रान रखे, मूंगफली का रखे, ये सारे डिफरेंट ऑयल, 3-4 सेसमे ऑयल रखे, 3-4 ऑयल्स आप डिफरेंट और अलग अलग जो चीजें आप बनाते हैं उसमें
अलग अलग ऑयल्स को यूज करें. So that is about oil. And about ghee, 1 bada chammach, 15 ml is 1 tablespoon. So in a day, you can go for 5 tablespoons, 4 of oil and 1 of ghee. Okay. So this is about that. Zinc, तीसरा हमारा हीरो है zinc. So zinc majorly non-vegetarian foods में है. Zinc की हमारी शरीर की requirement बहुत ज़्यादा नहीं है. It is 8 milligram for women, 12 milligram for men. अब अगर आप प्रेग्नेंट है प्रेग्नेंट लेडी है तो 11 मिलीग्राम, ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं तो 11 से 12 मिलीग्राम की जरूरत होती है नॉर्मली. अब ये majorly zinc is found in the non-veg foods, but our vegetarian foods are also rich in zinc. Nuts, seeds, dry fruits, आपके कैश्यू नट अच्छा सोर्स है जिंक का. सीड्स जो हैं सनफ्लावर सीड्स हैं, पंपकिन सीड्स हैं, वाटरमेलन के सीड्स हैं, चिया सीड्स बहुत फैड में है आजकल. चिया सीड्स हर किसी को पूछो, चिया सीड्स क्या है? तकमरिया, सब्जा सीड्स, हम जो नॉर्मली फालूदा में डालते हैं या पेट को ठंडा करने के लिए यूज करते हैं. सो ये आपका चिया सीड्स है, मॉडर्न नेम लेके आया है फॉरेन से. एंड सेसमे सीड्स, तिल के लड्डू, बेस्ट थिंग टू हैव. सो ये आपके नट्स और सीड्स आप अगर अच्छे से खाएंगे, 1 मुट्ठी जितना नट्स और 1 बड़ा चम्मच जितना सीड्स, हो गया आपकी जिंक की रिक्वायरमेंट इज डन फॉर द डे. Plus what we are eating, our legumes, pulses, the whole grains that we are eating, all these are little amount of zinc you are getting from everything. So अच्छे से well balanced खाना खाएं, संतुलित खाना खाएं, सात्विक खाना खाएं. पेट आधा ही भरे खाने से, यहाँ तक जब भरते हैं तब प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं. तो पेट यहाँ पर ही है, उसको बस आधा ही भरे, खुद को हल्का रखें. दिन में 4 बार खाएं, लेकिन आधा ही खाएं. So that is very important to maintain good health. Okay, and 25% you can have liquids. Liquids are very important these days. So गर्मी के भी दिन हैं, तो बॉडी को अच्छे से हाइड्रेटेड रखें. जितना हो सके पानी ज्यादा पिए, गर्म पानी पिए अगर आपसे पॉसिबल हो तो. अगर काम पे जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, गर्म पानी नहीं पी सकते तो एटलीस्ट नॉर्मल पानी पिए. डोंट ड्रिंक कोल्ड वाटर. बाहर में गए और सीधा ठंडा पानी उठा लिया, ऐसे ना करें. तो वहां पे बीमारियां सारी शुरू हो जाती हैं. सो बेसिक केयर जब आप लेते हैं तो देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. We can keep our immunity nice and strong with all the breathing techniques. You can increase your lung capacity with all the mudras that we just did. You can come out of your problems also easily, faster, and you can keep yourself fine. Is that all right? Anybody, any questions? Yes, thank you very much, Ami. Thank you. Thank very much. you. Okay, please do not leave. We will end Thanks a lot. mantra. We will end with a Shanti mantra. So spine को सीधा रखें, बॉडी को रिलैक्स रखें. प्लीज म्यूट रखें. आई एम रिसाइटिंग द शांति मंत्र. बंद करें. प्लीज म्यूट रखें, खुद को म्यूट रखें. बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है. प्लीज कीप योरसेल्फ म्यूट. ब्रीथ इन and breathe out. Take 3 nice deep breaths. Om Sarve Bhavantu Sukhinah. Sarve Santu Niramaya. Sarve Bhadrani Pashyantu. Ma Kaschid Dukha Bhag Bhave. Om Shanti Shanti Shanti. Slowly, gently rub your palms together, placing them on your eyes. Feel the warmth in your eyes as you place your hands in cup shape. Rub your palms across your face, your head, neck, shoulders, and all over your body. Give yourself a very, very warm and healing touch, a very, very energizing touch. Thank you and have a blissful day ahead. Keep yourself safe, healthy, fit, and do the practices regularly.
Thank you so much. Thank you so much.